Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. So guys, just to start with where we left off yesterday. We were talking about the hotel industry that is growing. See now what EIH, the Oberoi Group, it has launched. Uh, Please be muted. It has launched four hotels, four leisure markets. Four hotels in leisure markets. So this is like when you say Oberoi is launching or having a presence in four leisure hotels. Now they are saying leisure market presence. Leisure market means, do you think Oberoi hotels are cheap? Now I am not sure. They have not given the average rent away, but if you go and find what is the average rent of an Oberoi hotel is around 5-10,000. They are saying that it is a leisure hotel. Now this is what the demand is growing in India. The premiumization की जो बात हो रही है ना, so this all things can be linked to the topics that you are discussing in interviews. कि जब बोलते हैं premiumization हो रहा है तो कहाँ पे दिख रहा है premiumization हो रहा है? This is what, see, so what is happening that the Oberoi is coming up with a new hotel. राजविलास है that costs around 22K. उनका 22K आता है प्रीमियर में. If you are not going for the normal one, तो Okay. Oberoi Rajvilas starts with 21 around. 21. Yeah, तो 21K. Yeah. oh, oops. मतलब Okay. it's a very nice property here. Oberoi Rajvilas. अच्छा. So it costs around 21. Then if you go the higher range, it can cost you around 40 to 50K on the festival and when the demand is very high. तो कल था एक बड़ा आर्टिकल न्यूज़पेपर में कि सब होटल्स ना फॉर 15th अगस्त के वीकेंड को सब फुल है. Yes, sir. Everyone is I have full. read, yeah. हाँ. So this one, that I would say premiumization हो रही है. We can see it. People are spending money on it. So ये एक segment है that to be looked out ना, अगर देखना है तो आज तो इसके अलावा ना आज एक So even Lemon Tree Prestige is also opening its one property in Sambal as well. one property in Sambal UP. अच्छा, okay. Yeah. So this is also indicating the same thing, but I'm not aware that whether they are going for the premium segment or not. That I need to look on. But definitely, they are also means opening their hotels, and there has been news of a Lemon Tree that they have been continuously in the mode of expansion. Yes. तो ये पूरा industry is into no, I was talking just about the premiumness. I think Lemon Tree का कितना है average rent? I am not sure about it. I don't know, but I know that their room inventory now stands around around 18 to 19K rooms now. Oh, okay. The second news in the newspaper was about Axis. Now this Axis, Essex, I will say they pronounce it. I is Nike and Adidas turf in India. Now, and they specifically mentioned, while it drops to tier two cities and tier two, tier three cities की बात हो रही है. I'm not sure what is happening in these cities. But जहाँ पर मतलब मुझे पता है in Mumbai, people are struggling, to manage their finances. Okay, people are spending on it, but काफी frustrated हो गया because of the lifestyle in Mumbai, fast paced lifestyle है. Though salaries are high, but at the same time, yeah, job timings are also high. But tier two, tier three cities से demand काफी आ रहा है, and majority of the population lies in tier two, tier three cities. So Axis is, they are saying that out of the total organized market, so I can get a footwear market. तो ये नंबर्स ना वी कैन, आई विल जस्ट पुट इन द ग्रुप. तो ये ग्रुप पे डाल देता हूं मैं. सो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन द इंडस्ट्री पार्ट, कि इंडस्ट्री का तुमको डेटा मिल गया. तो क्या है कि आउट ऑफ द 5,000 करोड़ ऑर्गेनाइज मार्केट, लेट मी पेस्ट इट ऑन द ग्रुप. मैं ग्रुप पे डालता हूँ. सर, so about $90 market, it is more than 1,500 crores and excess, तो this is the feet में ये ना तुम्हारा फुटवेयर मार्केट, जो स्पोर्ट्स शूज है वो मार्केट. ओके, स्नीकर्स का मार्केट हो सकता है विच इज 5,000 करोड़. उसमें से 90 जो एक्सपेंसिव है वो सिर्फ 1,500 करोड़ है. एंड उसमें भी एक्सेस इज हैविंग रेंज ऑफ अराउंड 300 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आ रहा है. तो कितना परसेंट मार्केट शेयर हो गया? कितना परसेंट मार्केट शेयर हो गया?
300 revenue out of the 1,500 crores. 20% market share in the premium segment. और अगर if I talk about the entire one, 300 divided by 5,000. The Axis have a 6% market share in the food industry. अच्छा, if I talk about what is the luxury segment in the shoes, पहनते हैं ना तुम शूज, सबके पास होंगे ना, एडिडास के, रिबॉक के, नाइकी के, और भी है, रेड टेप है, बाकी भी दूसरे ब्रांड्स है इंडिया में. 300, sorry, so out of 5,000, 1,500 करोड़, मतलब अगर प्रीमियमनेस की बात करें, 30% मार्केट ऑफ द प्रीमियम, एंड $90 को अगर मल्टीप्लाई करें अप्रोक्सीमेट 80 से, सो 90 इंटू 80 गेट्स यू 7,000 के ऊपर के शूज की बात कर रहे हैं लोग. यूजुअली है ना, वही रेंज है. व्हेन यू गो ऑन दिस एक्सेस, एडिडास, नाइकी, यूजुअली 5,000 के आसपास उनके रेंज चालू होते हैं. 1-2 हजार में बहुत कम शूज मिलते हैं. So ये भी याद रखना, दिस इज वन ऑफ द डिटेल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि आउट ऑफ द टोटल मार्केट, शूज मार्केट, सॉरी, 30% मार्केट इज ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स. पता था ये तुमको? किसी ने नहीं लिखा आज, किसी ने ये न्यूज लिखा. ठीक है, दिस इज फुटवेयर की बात है, लिस्टेड कंपनीज नहीं है, बट पता होना चाहिए कि, क्योंकि शूज हम ये पहनते हैं, B2C ना, बिजनेस, हम पहनते ना ये शूज. अच्छा, if you don't know, बाटा इज इनटू द स्पॉन्सरशिप ऑफ सेलिंग एडिडास शूज इन इंडिया. अगर नहीं पता है तो तुमको लगता है ये सब लिस्टेड नहीं है, इट्स बिकॉज यू लैक इन जीके. बाटा सेल्स एडिडास इन इंडिया. ओके, तो बीच में एक टाई अप हुआ था उनका, बाटा एंड एडिडास का. सो एक्सेस इज ग्रोइंग, काफी स्टोर्स भी दिखते हैं आजकल, मॉल में जाते हो तो. ये एक था, और एक न्यूज था अभी, ये सम पीवीआर का बहुत टाइम बाद न्यूज आया है. आई हैव सीन इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ये हमेशा रिजल्ट टू रिजल्ट ही उसके न्यूज आते हैं. अभी दे हैव सेड, ही सेड दैट बॉलीवुड इज डूइंग गुड. मुझे लग तो नहीं रहा है, इसने बोला तो है, यहाँ पे कोई आर्टिकल था उसका, इज सेइंग बॉलीवुड इज गिविंग गुड गुड ब्लॉकबस्टर्स मूवी. आई एम नॉट श्योर कौन से बॉलीवुड मूवी दे रहे हैं. मैंने तो रिसेंटली एक भी नहीं देखा है, विच आई एक्चुअली लाइक, कि मैं थिएटर में जाके देखूं. एनीवन रिसेंटली तुमने कोई देखा है? सर अभी तो बट सैयारा इन्होंने आया यही था ना. बोला हुआ है कि इनका जो पाइपलाइन है वो हॉलीवुड कंटेंट से ज्यादा बेटर हुआ है. हाँ, नहीं, इसमें कोई ये आर्टिकल में इन्होंने लिखा है, बोली है. इसने क्या पे लिखा है कि बॉलीवुड इज ग्रोइंग फास्टर, या बॉलीवुड इज टेकिंग अप स्पेस, सब बोल रहा है. मतलब बॉलीवुड की एक्सपेक्टेशंस करी है, पर जो इनका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है वो इनका हॉलीवुड कंटेंट से ही आ रहा है. करेक्ट, हाँ. नहीं, या फिर उन्होंने कोई कमेंट किया था कि बॉलीवुड इज, कौन से, कोई तो आर्टिकल में था, ये जस्ट एक कमेंट. दूसरे न्यूज़पेपर में था सर. हाँ, दूसरे में था कि बॉलीवुड इज फोकस, बॉलीवुड इज ग्रोइंग ना. मेरे को तो नहीं लग रहा है क्या बोल रहा है. तो ये ऐसा होता है, व्हेन यू रीड कॉन्फ्रेंस कॉल ना, मैनेजमेंट तो अच्छा ही बोलेगा कि ऐसा, वो थोड़ी खुद की बुराई करेगा. बट ना, मुझे नहीं समझ रहा है. उस दिन ही मैं, हमारा बातचीत हो रही थी, मैं मेरे वाइफ से बात कर रहा था, बहुत दिन से हम कोई मूवी देखने नहीं गए. तो वी आर लाइक, कोई है ही नहीं मूवी मतलब देखने लायक ही नहीं है. वो हाउसफुल 5 वाज, मतलब इज नॉट इवन वर्थ वॉचिंग ऑन ओटीटी. बोलता तो है इधर, देखा है किसी ने हाउसफुल 5? Yeah, sir, it's not worth it, इट्स नॉट honestly. इवन वर्थ वॉचिंग ऑन ओटीटी. No, no, no. Like you have to leave your mind if you wish हाँ. to. सो आई डोंट नो, तारे सितारे जमीन पर, केसरी चैप्टर 2, आई हैव नॉट सीन. मतलब आई एम अ मूवी फैन, मतलब मैंने, आई हैव लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड जस्ट टू गेट इनटू दैट, वो बुक माई शो के मूवी टिकट्स के लिए. बट आई एम द वन हु हैव नॉट वॉच मूवी, बिकॉज सी रेड 2 तो देखा था मैंने, इट वाज फाइन, बट इट वाज ओनली वन टाइम वॉच. कुछ चीज अच्छा लगता है. सो फर्स्ट हाफ वाज बोरिंग, सेकंड हाफ वाज ओके. सेकंड हाफ एक्चुअली अच्छा था, फर्स्ट हाफ तो पूरा बोरिंग था. सितारे जमीन पर, वो जो, मुझे उसके प्रोमो देख के ही देखने का मन नहीं किया था. हाउसफुल 5 तो जाने दो. केसरी चैप्टर 2 वाज अ सीरियस वन. जट, आई एम नॉट श्योर व्हाट मूवी इज दिस, एंड दे आर सेइंग दैट सिमिलर विद बैक टू बैक मेजर रिलीजेस. कौन से ब्लॉकबस्टर से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो बेसिकली छावा से इनको आया था हेल्दी कंटेंट जो उन्होंने लिखा था, हाँ, कि इनको उससे लग रहा है कि बॉलीवुड से एक्सपेक्टेशंस है ऑफ द मतलब हाँ, स्पेसिफिकली उन्होंने यही मेंशन किया था. और उन्होंने ये भी बताया था कि इनका जो फुटफॉल है वो भी बड़ा है
12% के अराउंड। एंड इनका बेसिकली जो एड रेवेन्यू की वजह से भी इनका इस बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 17% ईयर ऑन ईयर इनका रहा है। अच्छा, नाउ आई विल टेल यू दिस। ये ना निशा, तुम बोल रहा था ना अभी, मेरे को ना, मैं भी ट्रैक कर रहा था पीवीआर काफी टाइम से। नाउ व्हाट आई फाउंड आउट, ये रेवेन्यू ग्रोथ तो बता रहे ना यार, इसमें ईयर ऑन ईयर बोलने की जरूरत है निष्ठा? इफ आई टॉक इन, क्या करोगे सॉरी ईयर, सर। इसके ईयर ऑन ईयर से कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर, मतलब इनका अगर मैं मेजरली बोलूँ तो इनको लॉस हुआ भी है। वो तो इनका अगर हम AS 116 का अगर मैं इम्पैक्ट हटा दूं 95 करोड़ का, तो अगर मैं इफ आई एम सीइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हाँ इनका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। या वो अब दिखता है अगर अगर 17% मतलब इंक्रीज, बट है नहीं वो, ऐसा है। सर, एक नहीं मिनट। नहीं नहीं, मतलब 17% इंक्रीज एज इन, इफ आई टॉक ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स, वो तो पहले की पहले कोई मूवी नहीं होंगे, अभी आया होगा तो इसके लिए बढ़ गया। हाँ, सो मतलब एग्रीड एसेट्स तो एग्रीड। उसका कुछ, उसका सो ये सब कंपनी ना, इसके कुछ पास्ट रिजल्ट देख के मतलब ही नहीं है, इसका तो क्वार्टरली देखना चाहिए कि लास्ट क्वार्टर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। अगर हम्म ग्रोथ है तो इफ यू सी, 900 करोड़, 900 करोड़, 2000 करोड़ यहाँ पे था हम्म 2023 में फिर इट हैज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, कंटिन्यूसली इसका डिक्लाइन, मतलब 2000 वापस उसने टच ही नहीं किया रेवेन्यू। अभी 2000 हम्म करोड़ में इसका प्रॉफिट था 700 करोड़, नाउ इट इज नॉट इवन हाफ, ऐसा हो गया। जबकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट 500 करोड़ से कम हो गया है, एंड पैट, इसके मार्जिन आ रहा है 27%। सो कंसर्निंग साइन है कि इंडियन इंडस्ट्री में क्या अभी ये, ऑब्वियसली व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अभी इफ यू वांट टू जज अ कंपनी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, तुम बोलोगे इंडियन का हॉलीवुड बॉलीवुड सेक्टर ही परफॉर्म नहीं किया है, तो ये कहाँ से परफॉर्म होगा? करेक्ट, मतलब कोई मूवीज तो आए। अभी इनका न्यूज भी आया था कि ये लोग साउथ के एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं अच्छा, बीच में, कि न्यूज ये भी आया था इनका। हाँ, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग दी काइंड ऑफ अ कंटेंट जो कि इंडियन ऑडियंस देखना चाहती है, तो ये आजकल काफी साउथ के एक्टर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। बीच में एक आर्टिकल आया था, इससे लिंक्ड नहीं है इस न्यूज से इतना, बट ओवरऑल अगर एक इम्पैक्ट सोचना है तो हाँ, मतलब अगर साउथ का कंटेंट देखें हम तो उसकी वजह से शायद बेनिफिट हो सकता है, मे बी। ठीक है, क्योंकि साउथ इन्होंने में कहा था कि ये अपना कुछ कुछ साउथ में पीवीआर खोलने, पीवीआर के हाँ, कुछ सेगमेंट्स खोलेंगे, ये बीच में न्यूज थी इनकी। खुले हैं वो लोग ने, काफी सारे खुले हैं साउथ में, साउथ एटलीस्ट में खोले, हैदराबाद बट में तो इनका खुले हैं। एवरेज नंबर बहुत कम है अगर हम देखें, हाँ हाँ, पर साउथ में क्या है ना, अभी। आई लुक एट द मार्केट, आई विजिट क्वाइट फ्रीक्वेंटली टू हैदराबाद, तो वहाँ पे अच्छा। पीपल आर नॉट इनटू कि मुझे पीवीआर में ही देखना है, उनको थिएटर है बस। और उधर का ना काफी सारे लोकल थिएटर्स है विच आर गुड इनफ, काफी सारे हैं वहाँ पे। मतलब मैं एक मॉल में गया था, तो ऐसे ही मॉल था, रैंडम मॉल था, कोई उधर पॉलिटिशियन का कोई मॉल था, एंड इट वाज अ गुड अच्छा। मूवी थिएटर, ऐसा था, कोई तो था रैंडम, मेरे ख्याल से कोई बड़ा चेन नहीं था, बट जो होता है ना सिंगल स्क्रीन हम्म वाले टाइप्स। या गॉट इट। हाँ, मतलब आई वेंट दैट विद अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लाइक सर उधर क्यों जाना है, इधर सस्ते में मिलता है, पीवीआर क्यों जाना है, पीवीआर महंगा है, ये सस्ते में मिलता है। और वो भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि सस्ता था तो खराब था, बस गुड, वही क्वालिटी था। ओके। तो दिस इज हाउ, तो पीवीआर है वहाँ पे, दे हैव स्टार्टेड, पीवीआर का इतना वहाँ पे प्रेजेंस नहीं था, अभी हम्म अभी होने लग गया है। बट मेजरली प्रेजेंस इसका नॉर्थ और वेस्ट में ही है, जहाँ पे हम बॉलीवुड, इफ यू लुक एट द इंडियन मार्केट्स, बॉलीवुड डोमिनेट्स फ्रॉम द, डोमिनेट इन फ्रॉम द वैल्यू परस्पेक्टिव, ज्यादा या रिलीजेस उसी के होते हैं। क्योंकि साउथ के मूवीज ऊपर तक आते ही नहीं है, कभी साउथ में ही रह जाते हैं। कितने साउथ मूवीज तुमने देखे हैं जो, ये आते ही पुष्पा नहीं वो सब ब्लॉकबस्टर छोड़ के कितने देखे तुमने? आते ही नहीं है इनका, अरे बिल्कुल वही ही नहीं पता ही नहीं पता। होता हमको कि मूवीज है इनके। मतलब अब थोड़ा सा लाइक थैंक्स टू द इंस्टाग्राम, तो वो थोड़ा सा अब पता लग जाता है कि if there is some good movie, अगर आप किसी को फॉलो करते हो who is a expert, otherwise you will not get to know. इट्स हैंडफुल ऑफ मूवी ना, पुष्पा होगा, बाहुबली था, केजीएफ था, दैट इज व्हाट। So that's a proper masala movie. That's why if we talk हाँ, about the content wise, we don't get that. We don't get the chance to see those things. अब ये बोल रहा है कि वापस वापस वो वीकेंड को, वॉर 2 एंड कुली, कुली किसका आ रहा है? श्योर, कुली किसका है? रजनीकांत। अच्छा, रजनीकांत का है, ओके। Mm-hmm. War 2 is Hrithik Roshan Again, and Junior Junior NTR. NTR is also collaborating. किसमें? Sir, Junior what? NTR and Hrithik Roshan are having हाँ, a film जूलियर War 2. एनटीआर करे, हाँ, वॉर 2 में War 2 जूलियर में। एनटीआर है, हाँ हाँ हाँ, ओके। जस्ट गेमिंग, जुरासिक पार्क नहीं चला, सुपरमैन नहीं चला, देखा किसी ने? फैंटास्टिक 4 नहीं चला।
द फैंटास्टिक फोटो बहुत खराब था, सुपरमैन भी खराब था। बहुत ही खराब। मतलब द डीसी वालों का पता नहीं क्या हो गया है, मतलब इवन फॉर मार्वल जो लोग ने वो आफ्टर एवेंजर्स इतने बड़े सेट कर दिया कि इतने वैसा ही मूवी चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्शनल। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ना, ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूँ मूवीज की, ऐसा नहीं कि मुझे मूवीज का फैन है या ना मुझे मूवीज देखने अच्छे लगते हैं। इट इज बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट तो ही तुमको कंपनी समझेगा। मतलब पीवीआर का इफ यू आर डूइंग एनालिसिस तो पीवीआर का एनालिसिस हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट में नहीं करना है। नहीं सर, let me ask you ना, if you want to do an analysis on PVR, how will you start doing? Forecasting करना है, देगा। show you how deep the research goes। तुमको लगता है सिर्फ हिस्टोरिकल नंबर्स करके होगा? ये भी जो नंबर आया है ना उनका, जो अभी निष्ठा ने बोला कि 17% जो ग्रोथ आया 1400, अभी ये नंबर आया कैसे होगा? So can I say if I want to forecast PVR, पहले तो मुझे उसके स्क्रीन्स पता होने चाहिए, कितने स्क्रीन है, टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स, थिएटर्स के बाद स्क्रीन, अरे तो किस स्क्रीन के हिसाब से होता है, थिएटर्स तो होते चाहिए ऑब्वियसली विद स्क्रीन्स। लेट अस से अज्यूमिंग पीवीआर हैज 100 स्क्रीन, ओके। अभी 100 स्क्रीन्स, कैपेसिटी कुछ होगा उसमें, 100 स्क्रीन में कितने, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 200, उस पर सीट 250 सीट्स होते हैं हर एक स्क्रीन में। अच्छा, कैन इज द कैपेसिटी हमेशा हर थिएटर हाउसफुल होता है? देयर इज समथिंग No, कॉल्ड sir. No, no. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। 60 to 80% की प्राइस 60 to 80% ही होता है, करेक्ट। तो अगर लेट्स से 60%, तो मैं बोलता हूँ कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड, तो मतलब यूजुअली 150 सीट्स फुल होते हैं, तो 100 इंटू द 150 सीट्स मतलब 15,000 सीट्स इसके साल, डिपेंड्स कि कितना तुम किस महीने में या साल में, स्क्रीन से महीने में तो महीने की बात कर, ठीक है, महीने में इतने सीट्स होते हैं, स्क्रीन होते हैं, तो इतने सीट्स है। अच्छा, इज इट उनकी राइट? टिकट भी 250 की पड़ती है, कुछ अराउंड मिस किया एवरेज टिकट प्राइस 250 का रहता है। है? और कुछ मिस किया मैंने इसमें? सर स्क्रीन्स तो डेली बेसिस की रहती है ना, क्या हुआ? स्क्रीन्स तो डेली बेसिस की रहती है ना, मतलब कि एक शो की, हाँ, एक शो की, हाँ, शोज, मतलब कितना नंबर है? ऑफ शोज 5 हाँ, रहते नंबर हैं ऑफ फिर। शोज, हाँ। और ये स्क्रीन इतना है, बट नंबर ऑफ शोज कितने होते हैं वो स्क्रीन में एक दिन में, ना? 5। 5 से। सर पाँच तो सो कहना से ये तो नंबर ऑफ सीट्स हो गए टोटल, करेक्ट। सर एवरेज टिकट प्राइस थी। नहीं, पहले तो मैं सीट्स ही काउंट कर रहा, टिकट तो बाद में आऊंगा, वो तो अच्छा, प्राइस पे तो। अभी तो मैं ठीक सीट्स है, ही ठीक काउंट, है। कितने सीट्स होते हैं, मतलब अज्यूमिंग हम्म 15,000 सीट्स हमेशा बुक होते हैं, ठीक है, बट कितने हम्म हैं? 15,000 सीट इसके है, बट तो महीने का कितने शोज होते हैं? 30। पर स्क्रीन का 5 होगा, तो अज्यूमिंग की स्क्रीन कैपेसिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई। तो कहना से इधर ही गलती किया मैंने, शोज होने से ना पहले तो, शोज कितने होते हैं 100 स्क्रीन में, शोज कितने होते हैं एक दिन में? अगर एक दिन में एज्यूमिंग 10 शोज होते हैं, तो महीने में कितने हो गए, इंटू 30, महीने में है तो इंटू 12, तो 3,600 शोज होता है, उसमें से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होता है? सर एक दिन में 10 नहीं होते होंगे, ज्यादा हो गए। ज्यादा होता है, मैं अजम्पशन ऐसे ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ओके क्या ओके होता है, कैसे रिसर्च होता है वो मैं बोल रहा हूँ। ओके। तो कैपेसिटी उसमें से इट विल बी समथिंग, तो सिक्स सब शोज फुल नहीं होते, तो कैपेसिटी इज 2160। फिर नंबर ऑफ सीट्स उसमें क्या है, ये सारी की सीट्स सारी। सीट्स आ गए, सीट्स इधर आ गए, नंबर ऑफ सीट्स, एंड देन नंबर ऑफ सीट्स में देर इज, फिर प्राइस आता है उसका, एवरेज टिकट प्राइस कितना है, 250, 250 नहीं होता है, ऐसे बढ़ गया है वो तो, बट स्टिल सर एक्चुअली दिस अभी कम हो गया है। दिस इज द रेवेन्यू दैट द कंपनी विल प्रोजेक्ट। इससे ज्यादा हो, अगर इससे ज्यादा प्रोजेक्ट करना है तो क्या करना होगा कंपनी को? या तो प्राइस बढ़ाना होगा या फिर कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना। प्राइस बढ़ाना, यूटिलाइजेशन। या फिर मतलब यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन तुम कैसे बढ़ाओगे? मूवी अच्छी नहीं होगा, तुम कैसे यूटिलाइजेशन स्क्रीन्स बढ़ाओगे? स्क्रीन्स बढ़ा सकते हैं। हाँ, दैट एक इज द तो ओनली स्क्रीन वे। बढ़ा सकते हैं, करेक्ट। अभी ना स्क्रीन बढ़ाने को कहना है से कैपेक्स लगेगा, यस। यस। कैपेक्स लगा मतलब लोन लगेगा, लोन लगा तो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब क्या पे डेप्रिसिएशन होगा तो ऐसा ना हो जाए कि एक्सपेंशन के चक्कर में पैट तुम्हारा कम हो जाए। सर पर ये लोग अभी फ्रेंचाइजी ओन पे भी जा रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं उस पे हाँ, भी।
तो मे बी इस वजह से इनके थोड़े से थोड़े से रेवेन्यू कॉस्ट बेटर कम हो हो सकते जाएंगे हैं। ना, कॉस्ट हाँ, कम हो जाएंगे, हाँ। चांसेस है, अच्छा, बट अभी स्टिल इसमें से भी मेजरली कंटेंट ड्रिवन इनका काम बहुत ज्यादा, तो इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू आंसर फॉर दिस राइट And if नाउ। I ask you what is the cost for this, COGS क्या होगा इसका, पता है क्या? Copyright licenses, distribution licenses. हाँ, नहीं वो तो मेंटेनेंस का वन टाइम वो हो गया, वो तो वन टाइम हो गया सब, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस, कॉपीराइट्स, और भी होता है इसमें कुछ। Utilities. क्या हुआ वो फूड पता है एंड इनका? बेवरेजेस। नहीं, इनका पता है, वो इस पे चलते हैं वो लोग, अभी ये लोग जो बोलते हैं, तो जैसे शाहरुख खान का Seafood. मूवी है प्रोडक्शन, वो कैसे कमाता है? इट इज ऑन कौन सा? रेवेन्यू शेयरिंग, इट इज ऑन रेवेन्यू शेयरिंग, अगर पता है तो ऐसा कुछ होता है कि प्रोड्यूसर गेट्स 30% और, या डिपेंड आइदर और। फर्स्ट में इफ यू लुक एट द इंटरव्यूज, फर्स्ट वीक में 50-50% होता है, सेकेंड वीक में पीवीआर हैज मे बी 60%, प्रोडक्शन हैज 40%, फिर उसके बाद इसके लिए वो फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुमने देखा है, जब ये मूवीज आते हैं तो वो लोग का हमेशा होता है कि फर्स्ट वीक ओपनिंग ओपनिंग इतना हुआ, ओपनिंग इतना हुआ, हाँ, फर्स्ट डे कलेक्शन। फर्स्ट डे कलेक्शन, तो उसमें सबसे ज्यादा, अगर फर्स्ट डे कलेक्शन सबसे ज्यादा हो गया, मतलब पीवीआर को सिर्फ 50% ही शेयर मिलता है, तो ऐसा इट गोज ऑन। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट नहीं था, बट ये टाइप का रिसर्च होता है। तो अभी इसमें क्या हो गया, ये तो हमने मॉडल बना दिया, बट ना मॉडल्स में अगर तुमको अगर कुछ फोरकास्ट करना है, तुम फोरकास्ट क्या बेसिस पे करोगे? पहले तो कितने मूवीज आ रहे हैं, वो भी है फोकस कि कितने मूवीज आ रहे हैं, आर पीपल वाचिंग, वरना ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता रहेगा हर 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 महीने, प्रॉबेबली प्राइस भी कम होगा। हम बोलते हैं प्राइस बढ़ाएंगे, बट ना मैंने आज ना कि रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ाना इतना इजी नहीं है, तुम 400 का टिकट 800 में नहीं बेच सकते, कंपटीशन भी है ही। हाँ, और एक इससे आता है, और एक रेवेन्यू का मॉडल है इनका, फूड एंड बेवरेजेस, जहाँ से अज्यूमिंग कि अगर इतने लोग आते हैं मूवी देखने, तो उसका 30% लोग कुछ ना कुछ खा लेंगे, वो भी एक assumption है, will you get from the past data. So the reason of telling you all these things is research is done that deep. It is not only models. हम आज देखो क्या कर रहे हैं, हम आज मूवीज की बात कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस की क्लास में मूवीज की बात कर रहे हैं, तो हमको लगता होगा कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं मूवीज की बात, फाइनेंस में क्या मूवीज की बात है, बट नहीं, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। हम एक्चुअली ऑफिस में बात करने के मूवीज, मतलब प्रैक्टिकली जाके इवेंट डायरेक्टर को जाके पूछने के कि सर आपने कोई मूवी देखा क्या अभी, और अगर मूवी देखा तो कोई था क्या थिएटर में, ये भी हम पूछने के। इसके लिए मैं तुमको पूछ रहा था कि तुमने देखा क्या कोई मूवी। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कोई देखा मूवी, तो थिएटर तो खाली होंगे, तो कहना चाहिए अभी वो ऑक्यूपेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी रिड्यूस, होंगे नहीं लोग। ओके, so Praful, you had a news on Praful is डाबर, Yeah, right. कहाँ पे पढ़ा तुमने वो न्यूज़ डाबर का, किधर था? So it was a yesterday newspaper of Financial Express. सर वो तो उसने बोल दिया था ना सत्यजीत ने कल। No, sir, I think this news has not been covered अच्छा, ओके because, yeah, that's why I mentioned today. ओके, गो अहेड प्रफुल। So I have seen the Dower has launched the new premium segment in the cocktail segments. Means he launched his it launched its new products. Means we have seen we have the very famous segment of the Dabur product, real juices. So this is the third largest beverage in India in terms of the market share or revenue. But Dabur has been decided to launch its new premium product and enter in the premium segment of the beverage market. So ओके, that's why he introduced the few cocktails, because cocktails was not famous in the Indian market previously. We generally use the fruit juices in the Dabur of the Dabur companies of its real brand. So now he introduced the few cocktail premium products, just like a Jimmy's cocktail, Swami drink, just like a apple mojito,
and Okay. Jamuni tea, ginger ale, or tonic water. Previously in Indian market, only Jimmy's Cocktail, Swami Drink, and Bartisans were walking in the cocktail premium segment. So now we have also the another product of Dabur, just like a apple mojito, Jamuni, ginger ale, or tonic water. So basically, they are trying to get a margins from the premium Right, product. increase their margin, yeah. So I think Yeah, yeah, also it was same, ना? Satyajit कुछ अलग था क्या? Yeah, No, sir. This is same. the same, ना? Same Yeah. था No, roughly. totally it's same. yeah. So I have mentioned because of the cocktail products. हाँ, Because Same वही news था ना आते हैं उसने bro. I he don't mentioned think ना he has real listened. cheers mixers he Same mentioned. news है sir, कोई extra नहीं है कुछ नहीं. okay. हाँ, so वही था 4,000 million मैंने कल बोला था 4 billion market बोलना है. Yeah, right. And हाँ, also have the cocktail segments also have the prediction to 15 to 20% CAGR growth. हाँ, तो यही था ना Next, कल का ही next था five. वही था Yeah, सेम कुछ yeah, अलग नहीं था उसमें. yeah. स्पेसिफाई तो ब्रांड किया था उसने तो इट वाज अ बिग न्यूज़ दैट दे हैव स्पेसिफाइड सो मच ब्रांड्स इन दैट. Right. Sorry, sir. I have no नहीं, द idea रीजन about. आई आस्क्ड कि ये आज अलग से किधर आया, मैंने तो नहीं देखा पेपर में, इसके लिए आई वाज कंसर्निंग कि कौन से न्यूज़पेपर में आया. Right. No. It was in the yesterday newspaper. नहीं, प्रफुल यू कैन नॉट से दिस बिकॉज मतलब ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि सर ये अलग था. इट्स बिकॉज आई एम एज एन एनालिस्ट, मेरे सब नंबर्स पे ध्यान होता है. Right. क्या बोल रहा है तुमने, अगर अलग होता न्यूज़ तो यहाँ पे नंबर अलग होता, Right. नंबर वही था ना. फोर Right. कल बोल दिया ना हमने, इसने 4,400 करोड़ लिखा था, मैंने बोला 4 बिलियन लिखना है. Yeah, exactly. So we are quite मतलब even if I don't read newspapers ना, but I have a go through it कि मैं सुबह सुबह उठ के वो पहले आता जैसे हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना, वैसे I scroll Yeah. all the newspapers. Though I don't read all the news, but मेरा ध्यान होता है कि किधर क्या चल रहा है. Okay. So Okay. हाँ. Yeah. Uh, So actually, sir, I have came from office in the morning 4 o'clock अच्छा. because I have a evening shift. So newspaper was not there. No Today's problem. newspaper, yeah. So No problem. that's I was just why. saying कि ये तो हो गया था कल न्यूज़, that's nothing else. Right. है फाइन है, but I was saying कि ये तो हो गया था ना कल न्यूज़. Yes, sir. Sorry, I will remember it. Yeah. Fine, no issues. Thank you, sir. Shikhar, anything on वो Genesis? Yes, sir. There is a there is a news regarding Hyundai Motors. Hmm. So, Hyundai Motors is planning to launch one new luxury brand in India, and it's a premium for premium consumers, and it's a mix of both EV and IC models, and starting initial price of the models are 31.7 lakh, and the highest price under these brands are 78.75 lakhs. So this is the news regarding one. This is one of the news. Next news is that Hyundai is planning to introduce 26 new models by financial year 2030, which includes 6 electric vehicles and 20 IC vehicles. And it is also expanding its EV network with outlets from 119 to 544 across nearly 240 cities. And it's also beginning operation in Maharashtra Talegaon plant, and with the beginning of this operation, its capacity would increase by 1 million. FY25 ये क्या था? Is set to begin operation 26 होगा ना? Yes, it's 26. 26 होगा ना? ये साल होगा ना शिखर? Sorry, 25 तो खत्म हो गया ना? 26. हाँ. Okay. So the total capacity of Hyundai, including this new plant, would reach to 1 million units. And it's also planning to increase and maintain its plant utilization over 90%. Oh, okay. Maintenance. So guys, as a financial perspective, what will happen over here? Now let me go on to this. ये Genesis जो brand है ना, it is a luxury brand and it is starting at 31, but it is a huge luxury brand which will compete obviously the Mercedes and at the entry level. But now I'm not sure. ये मैंने गाड़ी ना एक ऑटो कार शो में देखी थी कि Genesis, it's a good car, sedan थी है. I think now they are talking about the SUVs over here.
कल भी एक न्यूज था कि दे आर शिखर, आई एम नॉट श्योर, एक आर्टिकल था कोई तो ऑटो कार के इसमें, दे वर सेइंग दैट जेनेसिस दे आर स्टिल इवैल्यूएटिंग फॉर इंडियन मार्केट्स, सब बोल रहे थे वो लोग। सॉरी सर, मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है। नहीं, मैं से बोल रहा हूँ कि मैंने आई वेंट थ्रू आर्टिकल, अब लिखा था कि दे वर जस्ट, उनके सीईओ का था कि जेनेसिस को इंडिया में दे आर इवैल्यूएटिंग कि बराबर है क्या प्राइस पॉइंट्स और वो सब। सर एक कोई नई ब्रांड भी थी आई थिंक, वो भी कोई मतलब शायद, बिल्कुल आइडिया नहीं सॉरी सर। नहीं, मैं होंडा की Yes, बात sir. कर रहा स्पेसिफिकली, होंडा क्या Yes, कर sir. रहा I also read that they are हाँ, वो जस्ट analyzing the market. एनालाइजिंग द मार्केट। हाँ, तो आई लाइक दिस कार, मतलब ये जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी कार, इट वाज क्वाइट अ लग्जरी कार, एंड हमारा यही था कि इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं करता है। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना, इंडिया में द मोर इंजन साइज द मोर टैक्सेस यू पे, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड फिर ऐसा होगा कि 70 lakhs की तुम हुंडई लोगे क्या? द इंडियन मार्केट इज सो ना कि कल मैं जैसे सेशन में बोल रहा था हाउ टू जज पीपल, यू विल जज पीपल, उसके पास मर्सिडीज है तो उसके पास पैसा है, ये हुंडई क्या होती है? दैट इज द मेजर रीजन वॉल्वो ब्रांड इज नॉट डूइंग गुड इन इंडिया, इफ यू नो। मतलब तुमको मैं अगर पूछूं एस्पिरेशन ऑफ बाइंग अ कार, इट विल ऑलवेज बी अ मर्सिडीज और अ बीएमडब्ल्यू, ऑडी भी नहीं आता है क्योंकि सर अभी लोगों को न्यूज पता भी ही थी नहीं। ना कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवीज बढ़ी है, तो उससे मारुति और महिंद्रा का गैप डिक्रीज हो गया है, क्योंकि महिंद्रा की एसयूवीज हाँ बढ़ गई है। हाँ, नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्रीमियम मार्केट, कि प्रीमियम मार्केट में क्या है इंडिया में, व्हाई दे आर इवैल्यूएटिंग फॉर इंडियन मार्केट होंडा है। ये पता है हुंडई का एक वो ईऑन 10 भी था जो नहीं चला, ईऑन 6, इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो 30 लाख की आती है। EV6 sir. हाँ, Kia EV6. नहीं किया कि नहीं, ईऑन ईऑन हुंडई की ईऑन, Ioniq 5 था वो. आयोनिक 5, हाँ आयोनिक 5, सॉरी आयोनिक 5, आयोनिक 5 हैज नॉट डन गुड इन इंडिया, इट्स बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। बोलते हैं 25 लाख की 30 लाख की गाड़ी कौन लेगा हुंडई की। फिर उसकी वो ट्यूसॉन करके थी एक कार, अभी भी है वो, बट उसके सेल्स ज्यादा नहीं होते हैं, 40 लाख की गाड़ी है। पीपल लाइक हुंडई की 40 लाख की गाड़ी कौन लेगा, बिकॉज हुंडई ऑल्सो सेल्स एज लो एज 5 लाख कार, दैट इज i10। तो ऐसा होता है कि इतनी महंगी गाड़ी की, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो दिस इज हाउ यू लुक एट द इंडियन मार्केट्स। काफी सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आते नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्शन। वो वॉल्वो, वॉल्वो इंडिया में इसके लिए नहीं चलता और उसके सेल्स इसके लिए कम है, इज बिकॉज 80 लाख 1 करोड़ की गाड़ी लोग बोलेंगे वॉल्वो ये कौन सी गाड़ी है, वॉल्वो तो बस बनाते हैं। तो ये परसेप्शन है इंडियन मार्केट्स का कि वॉल्वो इज द सेफेस्ट कार। दोनों में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी में सबसे सेफेस्ट कार इज द योर वॉल्वो। बट वही परसेप्शन है कि वॉल्वो बस बनाता है तो उसकी गाड़ी कौन लेता है, गाड़ी कैसी होगी, गाड़ी में कौन बैठता है। या फिर वॉल्वो ब्रांड किसको पता कि वॉल्वो गाड़ी भी बनाती है। एंड इफ यू सी ऑन द रोड वो अपीलिंग लुक नहीं आता वॉल्वो का, जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में आता है। Now that's when Jaguar was the only reason of not doing good in India. JLR is doing good, okay, क्योंकि लैंड रोवर का तो मार्केट ही अलग है, वो एसयूवीज बनाता है। एंड इफ यू नो एसयूवीज, नाउ विल टेल यू हाउ द ऑटो इंडस्ट्री हैज डन इन इंडिया। ऑटो इंडस्ट्रीज ना हमेशा, इंडिया वाज अ सीडान मॉडल, पता है सबसे ज्यादा इंडिया में सीडान बिकने के पहले एक तो ऑल्टो थी, ऑल्टो मारुति थी, वो हैचबैक थे। फिर अगर लग्जरी वेरिएंट थी तो वो सीडान थी, मतलब वो एस्टीम आने की, पता है एस्टीम थी, फिर होंडा सिटी थी, फिर वो वर्ना थी, डिजायर। डिजायर है, हाँ डिजायर थी, फिर मारुति की CS थी। तो वो डिजायर भी वो लोग ने फिर कॉम्पैक्ट सीडान बना दी थी तो पीपल कैन अफोर्ड। सो इंडिया वाज दैट मार्केट। तो उसमें जैगुआर थी जो लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, बट इवन इफ यू सी टुडे मर्सिडीज का मेजर मार्केट वाज द सीडान। उनकी C क्लास, E क्लास, S क्लास, बीएमडब्ल्यू की भी 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज, और शाहरुख खान के पास थी 7 सीरीज बीएमडब्ल्यू की, उसका नंबर भी मुझे याद है 5055 था। सो दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस एट दैट टाइम कि शाहरुख खान इज यूजिंग अ बीएमडब्ल्यू कार, और वो सेडान थी। अभी जाके द रिसेंटली द ट्रेंड हैज चेंज एंड दैट इज व्हाई JLR हैज पिक्ड अप, लैंड रोवर हैज पिक्ड अप, क्योंकि उसके एसयूवीज है। तो लैंड रोवर ऑब्वियसली अभी टाटा ने लिया, इसके लिए वो थोड़ा बहुत इंडियन ब्रांड हो गया है कि चलो टाटा ने लिया है तो टाटा का प्रोडक्ट है तो इंडिया में लेना चाहिए। वही वॉल्वो इज अ बाहर का स्वीडिश ब्रांड है, एक तो पीपल डोंट लाइक इट, पता ही नहीं लोगों को ये वॉल्वो की भी गाड़ियां होते हैं। इफ यू गो एंड टेल टू योर फैमिली मेंबर्स कि मैंने वॉल्वो की गाड़ी ली है, दे विल लाइक हाँ तो क्या हुआ, पता ही नहीं कितने की आती है। बट द वे यू से तुम्हें बाय मर्सिडीज, तो परसेप्शन चेंज हो जाता है इंडियन मार्केट का। तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन, वो जो बोल रहा ना होंडा का कि वी आर प्लानिंग की लॉन्च, अभी 78 लाख की, क्वाइट ऑब्वियस 78 लाख की होंडा तुम लोगे ही नहीं।
वो ईवी की भी, वो किया की है EV6, कितने कितने दिखते हैं तुमको रास्ते पे? इंडिया में तो अभी एक ही दिखी है मुझे तो। हाँ, वो हार्डली दिखती सर है रास्ते पे। वो मारुति जैसा वो ये कर सकते हैं ब्रांड सेग्रीगेशन, मतलब एक अलग से ब्रांड बना सकते हैं जो हाँ, एज ए आइडेंटिफाई होगा कि लग्जरी ब्रांड है Hyundai का। टू मेक अ ब्रांड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ना, जैसे हुंडई ने हाँ, लेक्सस किया है, और मारुति का नेक्सा टोयोटा है का, ना शायद। टोयोटा का लेक्सस ब्रांड। टोयोटो का है ना सर? हाँ, क्या हुआ? टोयोटा का द ब्रांड इज लेक्सस ना, जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो। यस सर। टोयोटा का वो सस्ती गाड़ी भी आती है ना, तो इतनी 3 करोड़ की लेक्सस 3 करोड़ की आती है, हु विल बाय 3 करोड़ कार? तो क्या वो ब्रांड बनने में टाइम लगता है ना, मर्सिडीज इज देयर फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो सडनली ऐसा नहीं कर सकते ना कि मैंने होंडा का एक ब्रांड अलग से बना दिया, फिर लग्जरी वेरिएंट। यू कैन नॉट बीट द प्लेयर्स। तो वो वन ऑफ द रीजन है कि वो आर्टिकल में लिखा था ये सब चीजें, एंड दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। इफ आई वांट टू बाय अ कार, प्रोबेबली 80 लाख की मैं थोड़ी लूंगा होंडा। सर उसका एक रीजन भी है कि ब्रांड बनाने के लिए उसके ओनर्स हाईलाइट होना चाहिए। अभी BMW मर्सिडीज हाई लेवल पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, तो उस वजह से ब्रांड बनता है। ब्रांड बनता है। जेनेसिस वो लोग यूज नहीं करने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। एंड वो हो गया ना इतने सालों से ब्रांड। अभी तुम भी पॉलिटिशियन को बोलोगे होंडा चलाओ, थोड़ी चलाने वाला है। वो बोलेगा 5 लाख की गाड़ी आती है, मैं नहीं खरीदूंगा। लेक्सस भी, इंडिया में लेक्सस किधर दिखती है? यू डोंट सी लेक्सस मच इन इंडिया। पता ही लोगों को क्या ब्रांड है ये लेक्सस। सो ये रीजन है। हाँ, ये रैम्पिंग अप नाउ आई सेइंग ऑन द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। दिस वाज द क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च ऐसे भी होता है कि ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुरा गाड़ी लॉन्च कर दो चल जाएगी। हमने ऐसा किया था कि रिसर्च की, जैगुआर ने उसकी प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वी वेंट एंड सेड ये बकवास गाड़ी चलेगी नहीं इंडिया में। एंड तो मेरा मैनेजर इज लाइक, क्या तू कैसे बोल सकता है कि जैगुआर नहीं चलेगी इंडिया में? सर, आई नो द परसेप्शन ऑफ द मार्केट्स, आई एम इनटू, मैं वो पूरा देखता रहता हूँ ऑटो कार शो एंड दिस ऑल थिंग्स आई कीप ऑन लुकिंग एट। तो मुझे समझता है कि जो द वे दे आर मार्केटिंग इट, तो मैं स्पेसिफिकली जाके देख के भी आया था गाड़ी वो जैग। मतलब इफ आई हैड 50 लाख रुपीज एट दैट टाइम, प्रोबेबली आई विल नेवर बाय अ जैग। इवन नाउ मुझे कोई बोले मर्सिडीज छोड़ के JLR लो, तो ऑब्वियसली आई विल थिंक ट्वाइस। तुमको पता है लैंड रोवर की गाड़ियों में यू डोंट सी इवोक इन इंडिया, ज्यादा नहीं दिखते तुमको। वो इवोक नहीं दिखती, उसकी जो सस्ती मॉडल ना 60 70 80 लाख की गाड़ी नहीं दिखती। दिखती है तो लैंड रोवर डिफेंडर दिखती है, या वो SV दिखती है जो 2-3 करोड़ की आती है। रोवर। अगर तुमने देखा होगा तो, इफ यू से, इवोक काफी कम दिखती है। वो जो उनकी वेलार है वो भी कम दिखती है। वो खुद मैं गया था शोरूम में, तो मेरे को खुद शोरूम वाला बोलता है कि सर वेलार मत लो, आप स्पोर्ट्स लो। बोला मेरा बजट 70 लाख है, तो तुम मेरे को 2 करोड़ की गाड़ी क्यों बता रहा है? ऑब्वियसली 2 करोड़ की गाड़ी इज मच बेटर, बट कितना मार्केट होगा उसने गाड़ी का? ऐसे कितने लोग हैं जो 2 करोड़ की गाड़ी लेते हैं? तो लैंड रोवर दिखेगी तो वो डिफेंडर ही दिखती है, बिकॉज वाई इट इज, बिकॉज उसने कुछ अलग से दिया है कि ऑफ रोडिंग का उसने दिया है। एंड इट इज ह्यूज, डिफेंडर इज क्वाइट ह्यूज। दैट इज ओनली रीजन डिफेंडर इज डूइंग गुड इन इंडिया। और एल्स जैगुआर की एक भी गाड़ी नहीं चलती लैंड रोवर की इंडिया में। और अभी वो SV लग रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली एज हर्षल राइटली मेंशन, काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स ने वो गाड़ी ली है। कार्तिक आर्यन, सलमान खान का रिसेंट बाय था, संजय दत्त हैज परचेस्ड, रणवीर कपूर के पास है। तुमने देखा होगा तो वो एनिमल मूवी में थे, बताए 4 गाड़ियां लैंड रोवर, देखा होगा यस तो। सर, उसमें जी वैगन का भी दिखा है। नहीं जी, मर्सिडीज तो है ही ना, मर्सिडीज तो है ही इंडिया में। मैं ये बोल रहा था कि ये जो नए ब्रांड्स है, कि वो उनका कैसा आता है। जी भाई, मर्सिडीज तो है ही, मर्सिडीज तो इट इज, मर्सिडीज एंड BMW का कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में। इवन ऑडी इज नॉट एबल टू कम्पीट देम। ऑडी ने बीच में किया था, विराट कोहली वाज द ब्रांड एम्बेसडर, बट समहाउ दे ओनली वो उनका वोक्सवैगन ग्रुप में जो प्रॉब्लम हुआ डीजल इंजन का, कुछ। Now on the Hyundai part, when I say that launching new models, so see how it is impact the financial statement. Plans to models 26 new models by FY30. So assume they will require capex, a huge capex, rising EV networks, capex plus operational cost. Am I right? तो R&D भी R&D तो हाँ, वो तो है ही, वही कैपेक्स में आ गया वो तो। EV नेटवर्क्स बढ़ाना है, नेटवर्क्स बढ़ा रहा है, मतलब आउटलेट बढ़ा रहा है, ऑब्वियसली इट मींस कैपेक्स एज वेल एज द ऑपरेशनल कॉस्ट। एम्प्लॉयज लगेंगे, स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। अच्छा, नाउ दे हैव सेड दैट तलेगांव में द प्लांट हैज कम इनटू ऑपरेशंस फ्रॉम Q3 से, तो यू विल सी Q3 के नंबर्स में देयर विल बी अ ह्यूज स्पाइक इन द अदर एक्सपेंसेस।
या फिर 26 के बैलेंस शीट में तुमको दिखेगा कि काफी कैपेक्स बढ़ गया है, डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, तो डोंट से कि सर मार्जिन कम हो गए। तो तभी क्योंकि होने ही वाले हैं वो, क्योंकि अभी जस्ट प्लान चालू हुआ है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल डेवलप करने को टाइम लगेगा। तो तुमको अभी के मार्जिन नहीं, फ्यूचर मार्जिन पे प्रोजेक्ट करना है तो कि वो अगर सेल्स 26 उतने, में चालू होगा जब अगर ये प्लान, हाँ तो तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन मतलब P&L में कौन से इसमें दिखेगा? 26 के इसमें से दिखना चालू होगा कि वो अभी से तो स्टार्ट हो गया होगा तो डेप्रिसिएशन? क्वार्टरली नहीं, नहीं, तो जब तक ऑपरेशनल नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता है, वी डू नॉट चार्ज दैट डेप्रिसिएशन, ओके, तब तक सो ऐसा ही ये सी होता है। FY26 क्वार्टर 3 के सी P&L में क्वार्टर 3 से, हाँ प्रोबेबली, या ओके फिर क्वार्टर 4 से ना, कि ओके। डेप्रिसिएशन बढ़ना चालू दिख जाएगा, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। वो तो अभी एस्टिमेटेड है, हो सकता है वो लेट भी हो थोड़ा, तो हाँ लेट भी हो, क्वार्टर हाँ। 6 में मतलब 26 में दिखाएगा। 26-27 में, तो 26 तो समझ लेना कि FY30 तक इसके डेप्रिसिएशन बढ़ने ही वाला है, तुम्हारे होंडा का। एंड प्लस कैपेक्स साइकिल भी बढ़ेगा, बिकॉज कैपेक्स ज्यादा होगा कंपनी में, बिकॉज दे विल बी लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करके नहीं होता, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आता है। तो अज्यूमिंग इसके सब कॉस्ट बढ़ने वाले हैं होंडा के। नाउ व्हाट इज आर एज अ पर्पस ऑफ एनालिस्ट, हमको देखना है कि वो सब कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, इज इट रिफ्लेक्टिंग इन द सेल्स, मतलब सेल्स बढ़ रहे हैं क्या उतने, ना सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ रहा है सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो देन विल बी ह्यूज प्रॉब्लम। तो इन द फ्यूचर तो ध्यान रखना कि कौन से नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं होंडा के, उसका मार्केट शेयर कितना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। पता चले होंडा ने लॉन्च किए, साथ में मारुति ने भी और 10-15 मॉडल लॉन्च किए, तो अननेसेसरी देयर विल बी अ कंपटीशन। अभी 26 मॉडल कौन से मॉडल्स है, इफ आई आस्क यू, ये कौन से मॉडल्स है इसमें? इसमें मेजरली एसयूवीज है। अभी ईवी में भी कौन से ईवीज है, कितने प्राइस रेंज के हैं, मतलब सस्ते वाले हैं, महंगे वाले हैं? सर वो सब मैं देख नहीं पाया, मतलब मेरे को नहीं वो देखना तो था, नहीं आया, आया नहीं होगा अभी तक मतलब इतने ऐसे सब सर्च डिटेल्स। भी नहीं किया। सब डिटेल्स नहीं आया होगा, थोड़े बहुत डिटेल्स आए हैं बस इसके। ये लोग ऐसे भी लॉन्च करे 3-4, वो लोग ना एक अल्कजार के रेंज में लॉन्च कर रहे हैं 7 सीटर स्मॉल एसयूवी, ऐसा जो। सर इनका एक पैलिसेड करके भी है ना, वो भी आने वाला है बोल रहे हैं इंडिया में। कौन सा? वो पैलिसेड करके इनका एक Hyundai का ही है, मतलब बहुत बड़ी दिखती है, फॉर्च्यूनर जैसी दिखती है वो, मतलब हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ये भी वो था एक। बहुत, लेकिन बहुत अच्छी दिखती है वो, बहुत मतलब अच्छे दिखते हैं, आई हाँ। थिंक सो वो फॉर्च्यूनर को फुल टक्कर देगी इफ दे कम इनटू इंडियन मार्केट। वो मैं ऑटो वाला जो आपने वो ऑटो चैनल वाला, बताया हाँ। था ना, मोटर तो ऑक्टेन, हाँ। हाँ, तो वो मैं देख रहा था, तो उसके अंदर वो बता रहा था करेक्ट सब। करेक्ट, मुझे भी याद है, मैं भी देखा था ये, हाँ फॉर्च्यूनर आया था, पूरा हाईलाइट था कि हाँ, फॉर्च्यूनर को टक्कर, ऐसा टाइप। यस यस। हाँ। सर बट फिर उस प्राइस रेंज में अगर कोई जाना चाहेगा तो जेनेसिस क्यों नहीं ले लेगा? क्या हुआ? सर उस प्राइस रेंज में अगर लाइक आप प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद रहे हो Hyundai का ही, तो जेनेसिस ज्यादा बेटर होगा। नहीं नहीं, जेनिसिस 70-80 लाख का नहीं था, वो प्रीमियम 50 लाख, फॉर्च्यूनर 50 लाख की आती है ना। जेनेसिस भी 31 से स्टार्ट है ना? नहीं, जो बड़ी वाली 31 से, तो वो सिडान है। ओके। हाँ, वो एसयूवी जो जाते हैं ना, जो एकदम महंगे दिखते हैं, वो 80 लाख की है। नहीं ये भी है, ऐसी मार्केट इज देयर फॉर दिस कार एज वेल। पर अभी जो ट्यूसन निकाली थी ना, ट्यूसन भी यही रेंज की थी, 40 लाख की ट्यूसन थी, इफ यू नो। पर ट्यूसन में प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ 5 सीटर कार, डजंट लुक दैट बिग। फॉर्च्यूनर को टक्कर देना मतलब फॉर्च्यूनर जैसे दिखने वाली चाहिए, दिखने वाली। मैं प्राइस रेंज की बात ही नहीं कर रहा, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड ना हर्षल, तो वोक्सवैगन का भी ना एक गाड़ी है टाइगुन करके, पता विच है इज इन सर। द 40 लाख रेंज। सर लोगों को पता ही एक्चुअली नहीं है। इन व्हीकल्स का इशू ये होता है कि ये सीबीयू यूनिट आते हैं, इनका मास मार्केट नहीं इंडिया में, तो ये मास सब मार्केट, स्टेशन की वजह से बहुत महंगे हो जाते हैं। एंड फिर वो अपीलिंग भी नहीं है ना उतने, तो तो वही कौन है ले। ना, प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो गया तो प्राइस वर्सेस फीचर्स में वो फिर लूज करते हैं। करेक्ट, तो ये तो वही प्रॉब्लम होता है इंडिया में, तुम बड़ी गाड़ी लाते हो ना, तो वो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं इंडिया में। तो ये होंडा का ऑब्वियसली सी नाउ ये बोल रहा है कि टक्कर देंगे, बट एग्जैक्टली है क्या? बिकॉज होंडा के और दूसरे इश्यूज भी है। लाइक तुम बोलोगे अरे 5 लाख की भी होंडा आती है, मैं भी वही जगह सर्विसिंग लेके जाऊँ जहाँ पे एक 5 लाख वाला लेके जाता है, 40 लाख वाला लेके जाता है। तो पता है मारुति ने वो नेक्सा और ये अलग शोरूम्स किए थे। I'll tell you the reason why Tata is not successful. I own a Safari, okay, which costs around 35 lakhs. Fine. मैं तो ऑब्वियसली इफ आई अर्न 35 lakhs की मेरी गाड़ी है, तो समझ सकते हैं मेरी मेरी अर्निंग कैपेसिटी इज क्वाइट हाई। अज्यूम कि मैं पैसे वाला हूँ, यस 35 lakhs सर। की मेरी सफारी है। अभी टाटा की वो 4 लाख वाली भी गाड़ी आती है, वो तुम्हारे टाटा टियागो 5 लाख में आ जाती है ऑन रोड, बेस वेरिएंट ना। उसका कैपेसिटी क्या होगा, अर्निंग कैपेसिटी वेरी लो, मतलब ही इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी
a person who is not that uh, not that rich, तो समझो a rich guy and a not so that rich guy sitting on the same showroom, mindset सेम होगा, सर्विस सेम होगी, नहीं ना? द सेम इशू महिंद्रा का भी है। महिंद्रा पर फिर भी है ना, महिंद्रा के फिर भी 30 लाख के अभी आते हैं ना, से सस्ती गाड़ी, हाँ फिर भी आती है उसकी। तो वहां पे होते महिंद्रा हैं तो ठीक है, बोलेरो लेने के लिए 10 लोग ऐसा धोती कुर्ते में बैठे होते हैं, और साइड में आप 30 लाख की गाड़ी खरीदने जाओगे तो आप क्या सोचोगे? वही। पर महिंद्रा का क्या है, महिंद्रा का मास मार्केट इज रूरल, तो वहां पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता। महिंद्रा वैसे भी लोग वही आते हैं, धोती पहन के ही आते हैं, बट वो लोग लेते हैं 30 से 40 लाख की गाड़ी ले लेते हैं वो लोग। पर टाटा का एक था कि टाटा इज एन अर्बन प्रोडक्ट, तो वही हुआ, वो दैट इज द रीजन दैट दोस कार्स आर इन परफॉर्मिंग इन इंडिया, एंड प्लस उसका कस्टमर सर्विस इज वर्स्ट टाटा का। अब तुम जाओ, तुम बोलो 40 लाख की गाड़ी, तुमने 40 लाख की गाड़ी, तुमको उतना प्रीमियमनेस चाहिए ना, कस्टमर सर्विस पे जाओ तुम, उधर वहां के लोग हैं जो बात करते हैं, अरे सर गाड़ी में ये टूट गया है, वो टूट गया है, फिर वो उधर तुम्हारे उधर टियागो भी होगी जो सस्ती गाड़ी है, तो ऐसा ना पता चले, हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं टियागो का पार्ट उठा के मेरे टाटा सफारी में लगा दे, हैरियर भी इनफैक्ट। तो ये सब इंडियन मार्केट्स है विच हैज प्लेड अ बिग पार्ट। तो ये सब रिसर्च मैंने ओवर द पीरियड किया है, कि मुझे देख देख के समझ में आया कि ना कि रिसर्च ऐसा भी होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। मैं क्वांटिटेटिव ये रिसर्च। ट्विटर पे भी मैं देख रहा था, मतलब दो तीन, लाइक 2 or 3 people who have bought Tata like Tata cars, and they are like, we are not getting service at all. So even though their car is like 1 or 1.5 years old, they are going to switch because of they are not getting better services. करेक्ट। तो भाई Customer 40 लाख service. लेने वाला है तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो गाड़ी में बेच दूं, तो ऐसा है। उसमें से तो एक पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट इज ओनर ऑफ एटम बर्ग कंपनी। हाँ। तो ये विल नेवर बाय ना फिर टाटा, अगर मेरी सेकंड गाड़ी है, लेट्स से टाटा अज्यूमिंग सफारी इज माय सेकंड कार, तो मैं लूंगा ही नहीं फिर सफारी, तो फाइन, आई डोंट वांट, मेरे को बिकॉज आई कैन नॉट स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम। एक कितने सारे रील्स भी थे कि टाटा का बोलते 5 स्टार सेफ्टी, 5 स्टार सेफ्टी है, एंड फिर उसमें एक वो पूछता है कि अरे तुम सर्विस देने के बाद कितने, 1 महीने बाद आती है क्या गाड़ी? बोलते हैं हाँ, सर्विस को देने के बाद गाड़ी 1 महीने बाद आती है मेरी, तब तक क्या करने का, तब तक जाओ फिर ऑफिस तुम्हारे बस से। सो दिस इज द रीजन टाटा डिडंट सर्वाइव। तो अभी ये इसके लिए बोल रहा है, जो आउटलेट्स खोल रहा है ना, राइजिंग आउटलेट, सो इट इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड दो वो बोल रहा है, ऑटो वाले बोलते हैं कि ना इट विल बी अ टफ कंपटीशन टू फॉर्च्यूनर, बट ओनली टाइम विल टेल। अभी तक तो फॉर्च्यूनर को जितने भी कंपटीशन आए सब के सब बाहर जा चुके हैं इंडिया के, यस सर। पर एंड दे पहले वर से देयर। एक्चुअली नहीं है कंपटीशन फॉर्च्यूनर का, मैंने दोनों मतलब गाड़ी देखे हुए हैं, मैं दोनों बैठा भी हुआ हूँ, किसमें? अलग ही मार्केट है दोनों। किसमें? पहली सेट। पहले से, अच्छा, हो सकता है, वो तो वो लोग के बोलने के लिए है कि उतना बड़ा दिखता है तो फॉर्च्यूनर को कम्पीट होगा, हाँ तो मतलब फॉर्च्यूनर जैसा दिखता है वो, मतलब बड़ा हाँ साइज में। दिखता है बाकी वही। फिर लाइक फीचर्स वाइज अभी पता नहीं देखते हैं। देखो फीचर्स पावर, वाइज पहली सेट ज्यादा अच्छा मिलेगा, बट उसका हाइट भी उतना नहीं है, उसका विड्थ भी उतना नहीं है, लेंथ ज्यादा है उसका। एंड होंडा के फॉर्च्यूनर वाले लोग जो है फीचर्स के लिए गाड़ी लेते ही नहीं है। ये बात वो तो इमेज सच बिल्डिंग ले लेते। हाँ, फॉर्च्यूनर में एक सनरूफ भी नहीं है। पहली है। सेट इज एक्चुअली अ कॉम्पिटिटर फॉर इनोवा क्रिस्टा। हो सकता है हाँ। इनोवा का हो सकता है, वो फॉर्च्यूनर का नहीं है। आई थिंक उसके रेंज में होगा, फिर इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर के रेंज में होगा, वो बीच में किधर तो प्राइस होगा, तो राइट। जिनके पास फॉर्च्यूनर लेने के पैसे नहीं है और इनोवा से ज्यादा पैसे है। बट इट हैज नॉट वर्कड इन इंडिया, वो रेंज है ही नहीं इंडिया में काम करने, इसके लिए मेरे को था कि ये जो लॉन्च कर रहे हैं वो इज आर इवैल्यूएटिंग, क्योंकि उसके ना होंडा के 2-3 मॉडल्स है जो चले ही नहीं है ये रेंज में, इऑन 7 एंड योर टुक्सन। टुक्सन 2-3 बार रिलॉन्च हुआ, तीनों बार इट हैज फेल्ड, अभी भी फेल्ड ही है वो मॉडल। मतलब अभी 40 लाख की गाड़ी तुम चला रास्ते पे, लोगों को लगना तो चाहिए वाह गाड़ी है, और उसको देख के लगता है होंडा की गाड़ी है, क्रेटा जैसी होगी कोई। ये दैट इज द रीजन। ओके। तो सेम रीजन से किया के प्रीमियम मॉडल्स भी नहीं आते यहाँ पे। हाँ, किया के भी वही, EV6 भी नहीं चला इतना। EV6 नहीं आता सर, यहाँ पे लॉन्च भी नहीं किया उन्होंने, सेडान्स को लॉन्च ही नहीं करा इंडिया में। किसको? किया के सेडान्स आते हैं, हाँ, किया के सेडान जो लॉन्च ही करेक्ट, नहीं करे उन्होंने। लॉन्च नहीं कर रहे। उनको मैंने पता है अफ्रीका चल। में देखी थी किया की सेडान, एक सेम एज होंडा सिटी की तरह दिखती है। सर वही मतलब K4 आता है, मतलब पहले वो शायद दूसरे नाम से आता था,
अभी K4 हो गया उसका नाम, बट वो लाइक कॉम्पिटिटर है ये मतलब प्रीमियम सेडान्स का। और सर इवन ऑडी का आप बात कर रहे थे, ऑडी का भी इशू यही होता है कि फॉक्सवैगन और स्कॉडा जब मिल रहा है तो ऑडी हाँ लाइक जस्ट अ प्रीमियम वर्जन ऑफ दैट, प्रीमियम तो वर्जन लोग प्रेफर करते हैं कि 20 लाख कम में हम दूसरा गाड़ी खरीद लेंगे सेम। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए मर्सिडीज इज गेनिंग, मर्सिडीज वो सस्ते में जाता नहीं है ना। वही सर, BMW का भी सबसे सस्ता BMW है, उसके बाद उसके हाँ बाकी ब्रांड्स और प्रीमियम है, तो तो ना इसलिए। BMW थोड़े दिनों बाद बंद कर देगा वो ब्रांड, बिकॉज मर्सिडीज ने भी यही किया, GL वो CLA निकाला निकाला एंड देन उनका प्रोडक्शन नहीं, मतलब लोग फिर क्या आता है कि अगर हाउ इज इट ना, आई विल टेल यू व्हाट इज द परसेप्शन व्हेन ये डिफेंडर जो सस्ती होने की बात हुई थी ना, कि डिफेंडर बिकॉज ऑफ द FTA ट्रीटी इट विल बिकम इनएक्सपेंसिव। सो देर आर पीपल हु आर लाइक कि अगर मैंने 2 करोड़ की गाड़ी ली है एंड वही गाड़ी लोग अगर 80 लाख में खरीद रहे तो मुझे ये गाड़ी चाहिए ही नहीं। आई वॉन्ट टू मेंटेन दैट प्रीमियमनेस कि let's say if I buy a Mercedes, I don't want a much lower grade person buying a same brand. तो BMW सेडान्स में ऑलरेडी ये चीज करता है, वो 5 सीरीज की जगह 3 सीरीज का लॉन्ग व्हील बेस बोल के बेचता है। हाँ करेक्ट। तो वो लोग देखो वो महंगाई करते हैं, वो लोग मॉडल सस्ते करते हैं। अभी 2 सीरीज तो ठीक है वो लोग ने किया एंट्री लेवल, बट दैट डजंट वर्क क्योंकि मैं इतना वही खराब बोल रहा हूँ कि नहीं। बाहर जो आपको 5 सीरीज मिलेगा और इंडिया में आपको 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस मिलेगा, दोनों सेम होता है, बट वो यहाँ पे ब्रांड डाइल्यूट नहीं करना चाहते, इसलिए उसको 3 सीरीज बना देते हैं। करेक्ट करेक्ट। सेम गोज फॉर 2 सीरीज, वो 2 को 3 2 लॉन्ग मतलब 3 को 2 लॉन्ग व्हील बेस बोल देते हैं। वो लॉन्ग करेंगे हाँ। 2 सीरीज और जो CLA है गाड़ी ना मर्सिडीज के विचार इतने इतने खराब है, मतलब विद द प्राइस पॉइंट उसमें स्कोडा की सुपर आ जाएगी विच इज वेरी बिग, तो पीपल डोंट प्रेफर इट। CLA एंड 2 सीरीज देखो सेल्स बहुत कम है। मर्सिडीज की सबसे हाईएस्ट सेल्स कम फ्रॉम ई क्लास, दैट इज विच इज मोर देन 1 करोड़। सो ये है मार्केट ओवरऑल इंडिया का। तो व्हेन यू पुट इन ऑल दिस थिंग्स इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऐसा सब भी इंटरव्यूज में बहुत बताना होता है। तो सीधा क्विकली ऑन बजाज ऑटो, क्या हुआ बजाज ऑटो में? Yes, sure, sure. So, sir, Bajaj Autos, let's talk about the Bajaj Auto Q1 results. Bajaj Autos uh, dipped by their volume by 0.22% year on year to 949K units, but the profit has increased by 13.8% year on year to 22 billion, supported by strong exports and premiumization strategies. So volumes saw a marginal decline in Q1 FY26, driven by 9.1% year on year. This drop was in domestic demand by 529K units. The early onset of monsoon impacted consumer sentiments. However, sales are expected to recover with the projected 6% growth rate during the upcoming festive season. Exports, which includes two-wheeler and three-wheeler, have grown by 5.8% year on year to 419K units, which are majorly led by countries like Africa, Latin America, and Asia. And premium products have supported maintaining the volume sales mainly by KTM and Triumph bikes in the domestic market, which increased by 35% year on year to 25K units. Premium products have also supported Bajaj Auto to improve their gross profit margin by 240 basis points to 32.9% year on year, which led to increase the profit margin by 55 basis points to 16.8%. Now we तो talk about इंक्रीज the सीधा तो इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ना, वो नहीं लिखा था मैंने, अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी net profit margin. Sorry. सॉरी। Now we talk about the EV segment. Bajaj Auto has planned to launch new Chetak Electric in upcoming festive season, but due to the shortage of rare earth magnet, they have postponed the launch. But they are maintaining the ongoing production with the shift towards light earth magnet, as 14 billion of the total domestic revenue comes from it. ओके। तो आज ये रेयर अर्थ मार्केट का भी था ना न्यूज में कि दे आर इंडिया Yes, इज sir. प्लानिंग टू 5,000 crore का earth हाँ magnet. किसी और से लेना, मतलब दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट इट, ऐसा कुछ कुछ था।
अच्छा ये भी था But आज तो हेडलाइंस, आई सॉरी फॉरगॉट टू टेल यू कि 50% टैरिफ। सो इंडियन में जो बेचते हैं ना इंडिया, क्या क्या देखो, टी, कॉफी, फिश प्रोडक्ट्स, केमिकल, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग। तो टी कॉफी भी है विच इज गोज फ्रॉम इंडिया टू यूएस। तो टाटा कंज्यूमर्स है उसमें। यू टॉक अबाउट नो एक्सपोर्ट, इसके लिए आई डोंट प्रेफर एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स। कुछ भी होता रहता है इकोनॉमी में। वो सर अभी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा था, मगर अब इसके कारण माइट भी एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट क्वार्टर में डिक्रीज हो सकता है। नहीं, ये ना खाली फुकड़ है, थोड़े टाइम बोलेगा फिर अचानक से वापस चेंज कर देगा, बोलता है अमेरिका में ये चीज़ बनती नहीं है तो हम इसको एग्जाम कर देंगे। हमेशा का इसका। तो यूके भी सपोर्ट कर रहा है यूएस को इस चीज में, जो डबल किया टैरिफ, बोरिस जॉनसन। सिर्फ थोड़े इवन टाइम के चाइना लिए। भी सपोर्ट कर रहा है। क्या हुआ ना, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी एक आर्टिकल एक वीडियो आया था। वो कोई यूएस काउंसलेट वाले बोलते हैं कि एक बनाना बनाना कितने का आता है यूएस में। तो उसने बोला कि बनाना पे उसने कुछ टैरिफ लगाया है, हाँ, if you 50% टैरिफ। manufacture in US. हाँ। तो वो बोलता है यूएस में मैन्युफैक्चर करो बनाना। बोलता है बनाना होता ही नहीं यूएस में, प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो पागल, ऐसे लास्ट टाइम भी इसने ऐसे ही किया था ट्रम्प ने। दे हैड Modi had like he was telling at one of the speech that I will not be compromising our farmers, sector and textile or something he told. डेयरी एंड एग्रीकल्चर। Dairy and agriculture, yes. यस सर, मीन And he told मोदी इज that we रेडी are टू पे। ready to pay the price, but we will not compromise. हम्म। So mostly India will not like budge for what Trump is telling ट्रम्प to वो do. कुछ नहीं, वो थोड़े टाइम में निकल देगा, उसके बाद में वो अमेरिकन वाले उन पे प्रेशर डालेंगे कि अरे ये सब चीजें अमेरिका में महंगी हो रही है। आई विल टेल यू Yes. एक रीजन था। एक ना अमेरिकन जो विस्की है ना, एक आर्टिकल ऐसे ही कोई रील बनाया था किसी ने। अमेरिकन विस्की है जो इंडिया में आती है, जैसा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे कि हम लगाओगे, हम सस्ती बढ़ाएंगे तो ना अमेरिकन विस्की भी हम प्राइस बढ़ाएंगे ऐसा। फिर ये क्या बोलता है, ट्रम्प बोलता है कि ना जैसे इसने टैरिफ बढ़ाया तो विस्की बनाने को जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो इंडिया से ही आते हैं। तो फिर तुम इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हो तो तुम्हारा खुद का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, उसका उसका भी तो प्राइस बढ़ेगा। तभी ऐसा नहीं होगा कि ना कि वो इंडिया पे टैरिफ बढ़ाएगा और फिर ना बाकी चाइना और इससे कम करेगा, क्योंकि यूएस तो वैसे भी उसको क्या चाहिए, व्हाट इज ट्रम्प डूइंग, ही सेइंग यूएस में प्रोड्यूस करो, विच इज हार्डली नॉट पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल कि यूएस में इवन द लेबर रेट्स इज टू हाई। तो फिजिबल ही नहीं यूएस में प्रोड्यूस करना। सर उसका कंपैरिजन आया था आईफोन, जो अभी $1,000 का बिकता है, अगर यूएस में मैन्युफैक्चर किया तो 3 टाइम्स प्राइस हो जाएगा, 3,000 का बिकेगा। कोई ना, वैसे ही टाइम पास कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रम्प, प्लेइंग विद द मार्केट्स। जो ऑप्शंस में खेलते हैं उनके लिए अच्छा है, हाई वोलेटिलिटी उसके लिए ही है वो So ट्रम्प। वो इसीलिए like Trump's net worth before he became president of US was 4 billion, and within next 5 months his net worth became 8 billion. अच्छा यही नहीं Yeah, पढ़ा मैंने। yes, yes. And he was the one who is like swinging the markets in his favor only because he knows everything. वही है, वो बिजनेसमैन है ना, इज हैज कम हियर टू मेक मनी। फिर इसके अभी लिए वो business- एप्स्टीन फाइल्स का भी केस मतलब चल रहा है वहां पे, उसमें भी यही है कि शायद ट्रम्प का भी नाम है इसलिए रिलीज नहीं कर रहा, पहले बोला था सब रिलीज कर देगा। हम्म, वो वही है, अभी अभी it is बोलता said है ना कोई कि ऐसा फाइल ही नहीं है. it is said कि यूएस में a businessman cannot become a politician and a politician cannot be a businessman successful। ये तो he's a successful businessman ना, बिलियनर है वो। ट्रम्प इज अ बिलियनर। बट वो एक बहुत आर्टिकल्स भी आते हैं वैसे इसका, कंपनी चलाना और कंट्री चलाने में बहुत फर्क है। इट डजंट मीन दैट इफ यू कैन रन अ गुड कंपनी, इट डजंट मीन यू कैन रन अ कंट्री। तो है मतलब उसको इकोनॉमिक्स तो बोलते हैं कि ही डजंट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, वो सिर्फ खुद का फायदा देख रहा है, सर लोग बोल रहे हैं and वो दिख रहा है। इसने भी बोला हर्ष ने कि डबल हो गया नेटवर्क, ऐसे कैसे डबल हो गया, कुछ तो किया ही होगा उसने। सर उसने मतलब उसका बेसिकली जो भी नेटवर्क है मोस्टली रियल एस्टेट से आया है। अभी वहां पे भी जैसे आप इंडिया में बात कर रहे थे वैसे यूएस में भी है कि पिछले 5-10 साल से जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में पूरा प्रीमियम सेक्टर में है, अफोर्डेबल में नहीं है। तो इसलिए उसका इतना नेटवर्क बढ़ा है क्योंकि उसका पूरा प्रीमियम सेक्टर में और ऑफिस स्पेसेस में है। बट इट्स लाइक कि उसका नेटवर्थ पिछले मतलब 5 साल में नहीं बढ़ा है, वो पिछले 5 महीने में बढ़ा है इतना.
तो वो जब प्रेसिडेंट बना तभी बना उसका, वो बीच में जब उसने बोला था दिस इज बेस्ट टाइम टू बाय इन द हाँ, मार्केट। अच्छा अच्छा, हाँ उसके बाद वो बढ़ा क्या? फुल यूज किया है उसने उसका। हो सकता है, this is all- There is one irony. He was like, he announced that America will be producing 2 lakh jobs in a month, in a month. and data came that it is only 70,000. Hmm. So he said that Biden has appointed the person who is giving this data, so I will fire that person because he has given wrong data. क्रेजी, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था। बी कॉशन इन द मार्केट, इसके लिए ना फोकस ऑन डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट पे जाना ही मत। वो इट विल सेटल डाउन, ये थोड़ा डस्ट है, चलता रहता है उसका हमेशा। इट इज एवरी टाइम, लास्ट टाइम भी वो आया था तभी हमारे, मैं आई वाज एनालिसिंग ना, मैं एनालिस्ट था तभी, तो यही चलने का, अरे आज ट्रम्प ने ये बोला, सुबह सुबह आज उठ के मेरे को ना अभिषेक का मैसेज आया कि सर टेक्सटाइल विल गो फॉर अ टॉस। मतलब क्या हुआ आज, कुछ हुआ क्या? तो डिड आई मिस एनीथिंग? बोलते सर टैरिफ लगा दिया। मतलब अचानक, तो हम तो टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल विल ग्रो ग्रो, अचानक से लाइक कि सर टैरिफ लगा दिया। ऐसा है तो यूएस एक्सपोर्ट्स लाइक इंडिया जीडीपी का 3% है, वो सब रीडायरेक्ट हो जाएगा इवेंचुअली अगर ये टैरिफ लॉन्ग टर्म भी रहा तो। वो सब वो थोड़े टाइम बाद उनका ही प्रॉब्लम होगा, फिर पता चलेगा अमेरिका इज इनटू रिसेशन। ऑलरेडी रिसेशन है, वो कंपनी मतलब गवर्नमेंट बस ऐसा टालने की कोशिश कर रही है उसे 3 साल से। हाँ 3 साल से वो रिसेशन चल ही रहा है। वो सर वो लोग बोलते हैं कि जॉब्स हैं बट वो जॉब सारे फेक है वहां पे। मतलब सेम जॉब मैं खुद ट्रैक कर रहा था कि 2 साल से रिपोस्ट हुए जा रहा है बट फिल नहीं किया। मैं मान ही नहीं सकता कि सर 2 साल में उनको सही कैंडिडेट नहीं मिला। डिफिकल्ट है। अब यूएस वही बोलते हैं ना आजकल कि नेवर, नो डोंट लीव इंडिया करेंटली, बी अ प्रॉब्लम। मतलब इंडिया के जाना तो बिजनेस करने जाओ, नौकरी करने मत जाओ। ऐसा यू वांट टू डू अ बिजनेस, के दुबई इज अ गुड डेस्टिनेशन, सिंगापुर इज गुड, बट नौकरी करने इंडिया से बाहर जाना इज बिकम रिस्की एट, स्पेसिफिकली इन यूएस। पता नहीं कल उठ के तुम्हारा बोल दे कि वीजा कैंसिल हो गया, जाओ वापस इंडिया। सर अभी वो किसी एक सेनेट मेंबर ने तो बोला है कि सारे H1B कैंसिल कर दो अगर ये इंडिया रशियन ऑयल लेना बंद नहीं करता। बेसिकली जितने एग्जिस्टिंग H1B एम्प्लॉयज है सबको भाई वापस भेजने का वो बात कर रहे हैं। क्रेजी सिचुएशन। और सर उसमें ये भी है जो मागा सपोर्टर्स थे बहुत सारे वो खुद समझ रहे हैं कि अभी इमिग्रेंट्स को इनने निकाला तो क्या हुआ है। अभी बहुत सारे जो एसएमईज थे उनके एम्प्लॉयज सारे गायब हो गए हैं। तो जैसे ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं उनका पूरा की पूरा जितना एम्प्लॉयज थे सब गायब हो गए क्योंकि इनने इमिग्रेंट्स को इतना बाहर निकाला। ओके, फाइन फाइन गाइस, सो ओके, सो विल गुड डिस्कशन टुडे। मतलब ऑटो सेक्टर समझा तुमको, तो इट्स गुड कि तुमको समझ में हाउ टू लुक एट अ स्पेसिफिक सेक्टर, फाइनेंशियल मॉडलिंग टर्म से कैसे देखना होता है, so that it becomes easy to crack interviews. Okay, and it only comes while reading newspapers. That's it. हर्ष, तुमने आज कोई न्यूज़ क्यों नहीं लिखा? सर मेरे को समझा ही नहीं कि कुछ अच्छा न्यूज़ है आज, था तो इसलिए। इतना अच्छा, टी पीवीआर था, वो Hyundai था। पीवीआर ये सब का था, लेकिन मतलब मैं सोचा कि जो हम ट्रैक कर रहे हैं उसको प्रॉपरली करूँ, लेकिन मेरे को बहुत रेपिटेटिव लगा, इसीलिए मैंने किया नहीं। लेकिन मेरे को लगता है वो रेपिटेटिव ही आएगा, लिखना ही पड़ेगा फिर भी। हाँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लाइक व्हेनेवर आई लाइक एवरी डे व्हेनेवर आई रीड न्यूज़पेपर, आई फील लाइक न्यूज़ बिकम्स टू मच रेपिटेटिव, एंड इट्स लाइक सम आई थिंक कि विच व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से इट शुड ऐड वैल्यू, लाइक सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं नया। वो सेम सेम चीजें बोलते हैं कि लाइट अर्थ मैग्नेट यूज करेंगे और सब करेंगे तो सेम नहीं, बट लगता ये है था तो। ना आज ब्रिटानिया का भी तो था। हाँ वो ब्रिटानिया का मैंने लिखा, फिर मैंने बोला उसके अंदर एक ही पॉइंट है कि खाली अर्बन मार्केट में टैरिफ अच्छा नहीं है, मतलब टैरिफ का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है, तो अर्बन मार्केट इसलिए डिमांड अच्छा नहीं कर रहा है, जॉब मार्केट क्योंकि अच्छा नहीं कर रहा है। बस उसके अंदर एक ही रीजन मिला, तो मैं नहीं, बोला सो व्हाट यार हैपेंड ना, व्हेन यू राइट इट ना, तो हम्म तुम अगर लिंक्डइन पे लिखते हो ना, तो जब इंटरव्यूज को जाओगे ना, तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आता है कि सर देखो मैं इतने टाइम से लिख रहा हूँ, यही आ रहा है न्यूज़पेपर। अच्छा ओके ऐसा है कि तुम लिख रहे हो तो क्या सामने वाले को पता होना चाहिए तुम कुछ कर रहे हो। अभी मुझे नहीं पता ना तुम कुछ कर रहे हो, अंडरस्टूड, द ठीक है। पॉइंट कम्स ऑफ रेफरिंग यू, अरे तुम तो कुछ बात ही नहीं करते। ठीक है, समझ बोलते कि गया, सर मैं मुझे लिख रहा आता हूँ। है, करेक्ट आता है तो फिर दिखाओ मुझे, मतलब मुझे नहीं, दुनिया को हम्म दिखाओ तुम कुछ कर रहे हो। राइट राइट। या फिर तुम ऐसा भी, मैं एवरी डे यही आ रहा है, हैव अ लुक एट इट,
आज भी न्यूज में यही आया, तो बताना होता है कि आज भी न्यूज में ये आया, ऐसा राइट, आया, ऐसा ठीक आया। है, मतलब चलेगा। आई विल से अभी ना नेस्ले का मैगी इज गुड, करेक्ट, पर मैगी हाँ, के ऐड आते हैं अभी भी, मैगी के एड्स, आते हैं ना, हाँ देखा किसान है, के यस। आते हैं एड्स, यस यस। आते हैं। दिस इज हाउ यू नो प्रमोट योर सेल्फ, कि ओके, जो किस चीजें आती है बार बार बताते रहो कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, ये देखो समझ ऐसा, गया। आज भी पेपर में यही आया। चले, डन डन, तुम मेरे मैं को वैसा बताना सर कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, इफ यू आर डार्क कॉन्फिडेंट ना कि तुमको सब आता है, द नहीं क्वेश्चन मतलब ये हाँ मतलब इट्स लाइक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मतलब कि कौन सी कंपनी लेनी चाहिए हाँ, ऑब्वियसली, बट इट्स लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत रेपिटेटिव होता है वो न्यूज़, तो जो मेरे को ऐसा रेपरेटिव लगता है। यू हैव टू फाइंड ना कि सर कौन हम्म, सी कंपनी में फायदा होगा ये सब होने से। ठीक है, चलेगा। अगर एक ही न्यूज अगर रेपरेटिव है तो यू शुड बी डैम है ना कि तुम्हारा, इट शुड बी इतना इतना कॉन्फिडेंस कि तुम घर बेच के पैसा डाल सकते हो उसमें, कन्विंस समवन कि सर इसमें पैसा डालो, ये बढ़ने वाला, रोज रोज न्यूज में यही आ रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है। ऐसा है, और ठीक है। सर मेरे को ना ये डाउट था, मतलब कि मैं अपना ये ऑटो का कर रहा था ना, जो हम्म जो आपने वो वर्कशॉप का करवाया था, तो उसमें मेरे जो, मैं आपको एक बार शीट जरा शेयर करता हूँ, पहले एक सेकंड। हम्म उसके अंदर वो मेरे नंबर्स थोड़े मैच नहीं हो रहे हैं, तो वो मतलब मैं सब कुछ करके देखा, मैं 4-5 बार भी देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा उसमें इशू क्या है, तो एक बार आप जरा बता देंगे। किसके नंबर्स था वो जो नंबर्स ऑटो के थे ना, मैं भेज रहा हूँ एक सेकंड। हम्म, मैंने भेजा है आपको। हम्म, हाँ, क्या नहीं मैच हो रहा है। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ सो ये जो इसके अंदर जैसे डोमेस्टिक पीवी और एक्सपोर्ट पीवी अगर हम लोग ऐड करते हैं, सो इट शुड गिव अस दी टोटल ऑफ फोर व्हीलर्स का नंबर ना। करेक्ट, हाँ सो मतलब अभी मैं जब मैच कर रहा हूँ तो मेरे इसके साथ में मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैंने मतलब कि जो सभी जो सेग्रीगेशंस किए वो मैंने जितना चेक किया मुझे बरोबर लग रहा है। जुलाई के नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो तो अभी मतलब कि नंबर्स नहीं आएंगे ठीक है, बट उसके ये भी बाद। तो नहीं हो रहा है, टोटल इंडस्ट्री हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स और टोटल तुम्हारा डोमेस्टिक पीवी एंड हाँ, एग्जैक्टली exactly. मतलब किसी का भी नहीं हो रहा है, उसका भी नहीं हो रहा, मतलब किसका बाजू नहीं वालों हो का, रहा मतलब कि जून का नहीं हो रहा, मई का नहीं हो रहा, किसी भी मंथ का नहीं है, हो तो रहा। कुछ तुमने मिस किया होगा, एक सेकंड, सॉरी। टू सो व्हीलर यही कहाँ यहाँ से आ रहा है, सी हाउ यू चेक दिस बैक इज कंट्रोल और वो जो ब्रैकेट वाला बताया था आपने। के नंबर है ना सब, सॉरी। ये सब प्रेस रिलीज की नंबर है ना। हाँ, सब प्रेस रिलीज के नंबर है, Okay. सब प्रेस रिलीज के, खाली जो डोमेस्टिक के जो मतलब अपन जो हैचबैक सीडान्स जो चेक करते हैं, नहीं वो हाँ, इसमें तो बरोबर है, वो खाली वो डोमेस्टिक मतलब कि प्रॉपर बाइफरकेशन के साथ है, बाकी ये सब प्रेस रिलीज के ही है। तुम्हारा कहाँ पे था, समरी यहाँ पे था ना, समरी कहाँ पे था, ये वाला लिस्ट ऑफ डेटा, हाँ यस। नहीं वो अभी जो शीट था वो कहाँ पे था, कौन समरी, सा वाला? नहीं अभी जो तुमने टैली किया वो कहाँ पे किया, टैली अच्छा, वो आउटपुट ऑफ आउटपुट आउटपुट प्रेस में। रिलीज। So your four wheeler, so what you have done, list of data, okay, uh put PR, okay, तुमने फोर व्हीलर्स है करेक्ट, ये फोर हाँ, व्हीलर्स है, यस। ये फोर व्हीलर अभी सेल्स टू अदर ओईएम, ओके, एंड हम्म, ये भी सुनो फोर व्हीलर में आ रहा है। हाँ, अच्छा ये क्यों आया, देख तुम्हारा एक्सपोर्ट पीवी में ये फोर व्हीलर क्यों आया, ये एक्सपोर्ट पीवी में ही आएगा ना फोर व्हीलर, ये फोर व्हीलर ओके, ही है ना। टोटल एक्सपोर्ट सेल्स, तो ये जो फोर व्हीलर्स है इज इट टैलिंग है सबसे, वो देखना कि ये जो नंबर है, थ्री थर्टी कैसे आया, ओके 330 कैसे आया, तो व्हाट वी कैन अज्यूम दिस, तुमने ये फोर मारुति था एक, तो ठीक है, सब फोर व्हीलर्स लिए तुमने, फोर व्हीलर्स,
मैंने वो सब जगह पे कॉमन भी कर दिया, मतलब मुझे लगा कि कहीं हो सकता है स्पेस का कुछ इशू होगा। ये रहा, ये टोटल तुमने किया है। तभी यहाँ पे टोटल क्यों लिया फोर व्हीलर? एक्सपोर्ट्स ऐसा अलग क्यों नहीं किया है एक्सपोर्टर इसमें? दोनों क्योंकि में फिर फोर वो आने थे ना? दोनों, नहीं। ओके, डिफरेंस तो नहीं आएगा ना वैसे, मतलब क्योंकि देखिए, मतलब कि टोटल फोर व्हीलर इस डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स ना। हाँ, सो टोटल में मैंने फोर व्हीलर्स डाल दिया, एंड डोमेस्टिक और एंड डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट नहीं को। डाला तुमने, एक डोमेस्टिक में नहीं डाला ना। जब डोमेस्टिक पीवी फाइंड करोगे ये आंसर, ये डोमेस्टिक पीवी में वो आएगा नहीं ना। ओके। दिखता है, क्योंकि डोमेस्टिक पीवी के सामने आना चाहिए। सो क्या है, फोर व्हीलर्स किसके सामने आना चाहिए? क्योंकि नहीं, फोर जैसे व्हीलर मतलब अगर बिगर वन ना। ये टोटल है तो उसके अंदर टोटल है। डोमेस्टिक पीवी तो एडेड ही हो गया ना साथ में, क्योंकि नहीं दैट नहीं, इज अ बट टोटल व्हेन ना। यू आर फाइंडिंग एन आंसर ओवर हियर, इसमें तुम क्या उसको बता रहे हो सम को, कि सम क्या करो? डोमेस्टिक पीवी। डोमेस्टिक पीवी, करेक्ट। हाँ, और वो मैंने वहां पर डोमेस्टिक पीवी को सामने। सम किया, अच्छा डोमेस्टिक पीवी को सम हाँ किया, ओके। हाँ, और यहाँ पे तुमने फोर फोर व्हीलर, व्हीलर्स का फोर किया, व्हीलर को किया, यस। ओके। मैं दो तीन बार चेक किया। मैं सोचा कि मैं पहले आपसे नहीं पूछता, क्योंकि कैसा शीट मैंने किया है ना, तो हाँ, तो थोड़ा मुझे भी नहीं कंफ्यूजन, समझेगा, हाँ। हाँ। तो लेकिन फिर मैं कुछ हमेशा ये समझ। बोल्ड करके रखो ना, समझना चाहिए ना कि एडेड है ये। हाँ, ओके। वो कनेक्टेड डोमेस्टिक का क्या है? मेरा कहने का मतलब था, ठीक है, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एक सेकंड, लेट मी डू इट। हाँ, यस यस। फोर व्हीलर, तुमने एक फोर व्हीलर डाला है और मैं ये निकालता हूँ, ये पैसेंजर्स निकालता हूँ, ठीक है? फिलहाल के लिए निकालता हूँ। अदर्स कैन लीव, हाँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तुमको निकलना है, कैन लीव। ओके, हमेशा बोल्ड करके रखो ना, हर समझेगा कैसे कैसे है। हाँ सर, वो एक्चुअली मैं जो ये लिंक्ड है ना पूरा, तो मैं मेन वाले में कर दूंगा। तो ये फोर व्हीलर है, ये फोर व्हीलर, ठीक है, ये दो फोर व्हीलर है, हाँ। ठीक है। एंड तुम्हारा एक्सपोर्ट्स है, ये भी फोर व्हीलर है, ठीक है। व्हेन आई ऐड दिस 1,31, 1,77, ऐसे तो मारुति के टोटल फोर मैं व्हीलर से, करेक्ट। मैं ऐड करता जाता हूँ, एक सेकेंड ना। 177 732, ठीक है। 732, ओके। दिस आर ऑल। तो इसमें मारुति क्या, का तो मारुति का क्या बचा है? मारुति का ओवरऑल अपने सेल्स इसमें में, हो गया, जो पूरा आने वाला है, खाली सीवीज बचे हैं फिर। हाँ, खाली से 20 बचा, करेक्ट। हम्म। फोर व्हीलर, अच्छा, तो फोर व्हीलर डोमेस्टिक, और इसमें कितना ये भी लिखना, इसके डोमेस्टिक कितने हैं? 137, और इसके एक्सपोर्ट्स। हाँ, तो अभी ये भी एक एक मिस हो गया, ये भी है, ठीक है, फोर फोर, तो इसके फोर व्हीलर्स टोटल कितने हैं? वन पैसे ये। सेवेंटी सेवन अच्छा, तो इसमें तुमने डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट क्यों नहीं डाला है फिर? ये जो किसमें? ये जो इसमें, ये भी तो डोमेस्टिक का पार्ट है ना। डोमेस्टिक। फोर व्हीलर डाला है, तो इसके सामने हाँ, डोमेस्टिक होना चाहिए और एक्सपोर्ट होना राइट चाहिए ना। राइट राइट। ये खाली वैसे ये। इसमें भी ना, तुमने फोर, अच्छा ठीक है, ये तुमने, तो ऐसा मत करना हमेशा ना, कीप इट, ये ऐसा ही रखना। फोर व्हीलर जो है ना, ऑलवेज कीप इट। नहीं, नहीं आ रहा है। वो लिंक्ड है इसीलिए। नहीं, बट आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, ठीक है, ये लिंक कर देता हूँ मैं। सब लिंक्ड है क्या? हाँ, यस। वो जो मेन शीट है ना Hyundai का, उसमें फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। वेल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख कर रहा हूँ Hyundai का। नहीं तो एक काम करो, व्हाट यू डू इज, ये हम्म। मेरे इसमें खुल क्यों नहीं रहा है? क्लियर भी नहीं हो रहा है, कुछ किया है क्या तुमने? यहाँ पर Hyundai पे ही खाली क्लिक करके पूरा ड्रैग किया है, इसीलिए वो पूरा लिंक हुआ है बस। अच्छा, क्यों नहीं देख सकते? हमेशा ना मेक श्योर जो फोर व्हीलर अलग से मत लिखना, हमेशा उसके सामने ही लिखना, क्योंकि वो एडिशन करके भले आ जाता है, बट वी हैव हाँ। टू स्पेसिफाई इट। तो फोर व्हीलर तो क्या, देखने में इजी हो जाता है। अभी इसमें जैसे है, इसमें तुमने नहीं लिखा है डोमेस्टिक, तो वहाँ पे होना चाहिए डोमेस्टिक पीवी, ठीक है। और इसके सामने, कि वो भी तो पार्ट, अभी आ क्यों नहीं रहा है, व्हाई इट इज नॉट हाँ, कमिंग? वही मेरे को भी नहीं समझ रहा है। अच्छा, आप ना इसमें एक काम करिए, वो मारुति का है ना, हाँ, मारुति की शीट में चेंज कर दीजिए, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, लिंक्ड है इसलिए। सर आप शायद फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं, आप वैल्यू कॉपी नहीं, करके वैल्यू नहीं, कॉपी कर वैल्यू भी रहा करके था, देखो, वैल्यू कर नहीं। रहा था, बट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो वो लिखा है ना, सेल्स ऑफ OEM, उसके सामने अच्छा, इसी, लिखना है ना। हाँ, तो एकदम सील्स ऑफ, इधर ही लिख कर दो।
तो हो जाएगा ना। नहीं सॉरी, इधर हमको डोमेस्टिक पीवी डोमेस्टिक पीवी सर। अभी हो सकता है टैली हो जाए। डोमेस्टिक पीवी आ गया। अभी व्हाट इज द डिफरेंस? कॉपी करूँ क्या ये? हाँ करके देखो, हो जाएगा वो खाली। हो जाएगा। हाँ बस देखते 330 था ना पहले भी। क्या हुआ? हाँ 330 था। हाँ बस चेंज नहीं हुआ ना कुछ तो डोमेस्टिक पीवीज में। आई थिंक सो आ जाएगा मोस्टली, हो सकता है। हो गया। हो गया। यही था वो एरर, ठीक है। यस यस, वो खाली उसमें वही एरर था आई थिंक सो, वो जो एक्सपोर्ट के सामने डोमेस्टिक पीवी नहीं लिखा था। डोमेस्टिक पीवी नहीं लिखा था, बस हाँ वही एरर हाँ था। ओके। टैली तो मैं होना चाहिए, क्योंकि यस इसके लिए जो भी लिखता था ऐसा नहीं लिखना है। टोटल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो भी डालते हैं नंबर्स तुम हाँ उसके सामने एक दो अगर समझा। चीजें डाल रहे हैं तो फोर वो व्हीलर एक्चुअली के मेरे को सामने। फोर फोर वो जो हाँ फोर्थ वाला जो वीडियो जो देख रहा था ना मैं, थर्ड हाँ था कि फोर्थ था आई थिंक सो, हाँ। थर्ड वाला। तो उसके हम्म। अंदर मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था कि किसके सामने क्या लिखूं, मतलब अच्छा। फोर व्हीलर और डोमेस्टिक वाला सब वो, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे थे ना उसको। हाँ 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 तो वो मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं, फिर मेरे को लगा कि जो टोटल मैंने नंबर्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, जैसे जो आपने जो शीट बनाया है उसके हाँ अंदर जैसे कि आपने टोटल ऐड किया और साथ में एंड में लिख दिया कि दिस इज टोटल, हाँ। और फिर उसके बाद में फोर व्हीलर सामने लिखा, डोमेस्टिक जहाँ जहाँ वैसे। मैंने वो ला- हर बार टोटल किया है ना, इसीलिए मैंने हाँ फोर हाँ। व्हीलर वैसे लिख दिया ओके। उसको। नहीं वो मत चलेगा। करना, टोटल मत करना, हमेशा लिखना, क्योंकि वो फिर ना कभी कुछ आ गया ना एडिशनल तो प्रॉब्लम हो ठीक जाएगा। है। तो क्या ठीक। मतलब तू रीचेक इट कितना इजी हो जाता है ना, इसके सामने इसमें लिख दिया, हमने सामने लिख दिया। हाँ ठीक कि है फोर व्हीलर चलेगा। की बात कर तो ये सब नंबर्स तो आने ही चाहिए उसमें। चलेगा ठीक कि है, वो तो मैं वही है। मैं इसका एक और वर्जन बना देता हूँ और उसके अंदर चेंज करता हूँ, ताकि अगर वहाँ कुछ टैली का इशू हो तो अपने पास एक मॉडल रहेगा पहले हाँ से। अभी तो शायद से बाकी सब तो हो रहे हैं, या कुछ बाकी नहीं हो रहे? टू बाकी व्हीलर्स। सब हो रहे हैं, बाकी जैसे अभी ये है टू व्हीलर्स। स्कूटर्स वाले जो टू व्हीलर्स है वो पूरे टैली हो रहे हैं। अच्छा। ये टू व्हीलर्स, ओके, टोटल टू व्हीलर्स, तो टोटल टू व्हीलर्स है 1270 हो ट्वेल्व रहा है। सेवेंटी हाँ ओके फाइन, ये हो रहा है। स्कूटर, अच्छा ये तो इंडस्ट्री है ना वैसे भी, स्कूटर। हाँ यस। ये तो 46% ये ईयर ऑन ईयर है ग्रोथ। क्या हुआ हाँ इस बार? यस आई हैव नॉट सीन 27 फोर व्हीलर्स। इतना 27% ग्रो हुआ? क्या यस अचानक? वहाँ। फोर व्हीलर इंडस्ट्री। सिद्धांत है क्या कॉल पे? सिद्धांत, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है फोर व्हीलर में? सिद्धांत ने बनाया था। हाँ वो मैंने देखा था कि उसमें 27, आर यू श्योर? वही मेरे को भी डाउट आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल मैंने से ये नंबर। सिर्फ अपने इंडस्ट्री है ना, इसके लिए होगा। सिर्फ हमने चार ही कंपनीज लिए ना, पांच सी हाँ कंपनीज है ना इसमें। यस यस। ये हो दैट सकता है। दैट माइट बी द रीजन, खाली चार ही तो क्योंकि कंपनी महिंद्रा लिया है। महिंद्रा हैज ग्रोन एक्सेप्शनली। तो देखो ना, अगर चेक ही करना है क्या हुआ है, इतना ग्रोथ क्यों हुआ है, तो लेट्स चेक अबाउट मारुति। मारुति में तो डी ग्रोथ इसमें नहीं किया, मारुति का भी करता ना। नहीं मारा कुछ तो। मारुति के इसमें उतना कुछ मारुति का थ्री मेजर नहीं है। परसेंट है सबसे ज्यादा, अगर तुम देखोगे तो इसका ही बड़ा है। अभी मैंने महिंद्रा और ये सब का डाला नहीं है, करना है वो। अच्छा हाँ, ये भी नहीं था एक। होंडा भी नहीं था लास्ट ईयर, इसके लिए वो हाँ नंबर क्यों नहीं है इसका? ये क्योंकि क्या? आप अगर देखेंगे Hyundai का, हाँ तो उन लोग का जुलाई 24 मतलब लिस्टेड नहीं थे ना। हाँ निश्चित नहीं था, हाँ तो करेक्ट। इसीलिए, और मैंने कैसे कैसे करके सब नंबर्स निकाले उनके, लेकिन फिर वो मतलब मेरे को इसके अंदर एक्सपोर्ट का जो Hyundai के शीट में जाइए ना आप एक बार। हाँ अभी आप देखेंगे, देखिए जुलाई 24 में एक्सपोर्ट का नंबर नहीं मिल रहा नहीं मुझे, मिल रहा है, अच्छा। और इसलिए वहां पर टोटल नहीं आया है, मतलब इसीलिए बस। हाँ अभी अगर मतलब ठीक है, डाल एक्सपोर्ट दो। का नंबर, हाँ इतना ही कुछ आजम, अभी के लिए असम, डाल दो ऐसे ही। तो फिर वो नंबर नंबर आएगा बरोबर 20, आ जाएगा। 25 के भी नंबर्स आएंगे, नंबर्स पे नहीं, अच्छा हिस्टोरिकल नहीं बताते वो लोग, हाँ। नहीं तो ये हिस्टोरिकल कहाँ नहीं से है। मिले तुमको, सब कैसे ये डाले? हिस्टोरिकल ऐसे मिले कि उन लोग जैसे कि कोई कोई जो उनके प्रेस रिलीज होते हैं, तो हाँ उसके अंदर दे से कि जैसे मई के 25 ग्रोथ के हुआ है, हाँ। नंबर्स डाले, तो वो बोले हाँ कि एक्सपोर्ट में इतना परसेंट ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ है, तो हाँ मैंने करेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू लेके कर लिया उसको। ओके, तो ये हाँ, तो इसके लिए इतना बड़ा नंबर आता, वही क्यों हाँ अभी अभी आएगा बराबर। अभी वो आएगा सही में सही 63 में। ना, अभी आया ना हाँ बराबर, वही मतलब yes, yeah, 37% ग्रोथ इतना हुआ ही नहीं ना हाँ पैसेंजर में। वो हुआ था तो सभी कंपनीज भाग गए अभी। हाँ तो इसके लिए वही तो मैं, एवरेज में मेरा से ध्यान हम होता ना। 3 क्वार्टर्स का सब्ट्रैक्ट करके भी एक क्वार्टर का निकाल सकते हैं ना। ईयरली नहीं, ईयर मंथली है ना ये। देते देते ही नहीं हम लोग डेटा, एक वो अब भी कंपनी लिस्ट हुई है ना Hyundai, अभी इसीलिए। लास्ट ईयर के डेटा नहीं है उसके। वही मैं सोचा कि नंबर इतना है, आई एम गुड एट इट, क्योंकि मुझे नंबर समझा कि इतना बड़ा नंबर कैसे आया हाँ अचानक राइट। से। इट इज बिकॉज आई इन्वेस्ट।
इतना होता तो मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो भाग जाता ना। राइट। ओके। तो ये टू व्हीलर का भी हो गया, 10% तो डोमेस्टिक भी बहुत सब ज्यादा हो है। गया फिर तो अभी बरोबर। क्या बोल रहे हो? सो अभी सब नंबर्स टैली हो गए हैं। पहले हो गया, हाँ। हाँ अभी सिर्फ है कि क्या हुआ ये 18% में, क्या अभी क्या बढ़ा सर, इसमें? एक बार ये जो डोमेस्टिक और ये हैचबैक वाला जो सेगमेंट मैंने किया ना नीचे वाला, हाँ एक हाँ ही, हाँ, उसको एक हाँ। बार देखिए ना जरा ड्रैग करके, सब नंबर्स उसमें भी ऐड हो रहे हैं क्या बरोबर। मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। 271 है नहीं, अभी इसमें ना नहीं वो, डोमेस्टिक नहीं है मेरे ख्याल से ना। ठीक है, डोमेस्टिक लिखा है, बट ये ओवरऑल सब में यू कैन नॉट कैलकुलेट डिफरेंटली, हाँ वही, डोमेस्टिक है या एक्सपोर्ट्स है। क्योंकि क्योंकि कैसा होता है, कंपनीज मेनी टाइम सेज दैट इट इज एक्सपोर्ट्स एंड वी हाँ assume that it is four wheelers, but हाँ। it can also be commercial vehicle as well as two wheelers ना। मतलब हम्म। अगर if they are into two wheelers, so might be two wheelers और three wheelers हो, commercial vehicles भी हो सकते हैं, and they don't give bifurcations, इसीलिए वो उसमें से नंबर्स बहुत पार्ट्स बार भी हो सकते हैं, कई बार इंजन सस्पेंशन पार्ट्स अकेले होते हैं, नहीं नहीं जरूरी। नहीं, वो और जो सर वी आर यूनिट्स टॉकिंग देते हैं। अबाउट द वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स हाँ में अलग पार्ट्स नहीं होते। हाँ, वॉल्यूम्स में सीधा यूनिट्स देता है कार के, जैसे हाँ, या मतलब गाड़ी के। ठीक है, ये तो भी मतलब कि नंबर हर डाली नंबर थी। वैसे टैली नहीं हो सकता। ये भी टाली डोमेस्टिक नहीं पैसेंजर्स, वो, तो कि एवरीथिंग ये इज ये डोमेस्टिक तुमने जुलाई कहा था। इसीलिए नहीं, ये इसीलिए नहीं हो रहा है सर, क्योंकि ये जुलाई के नंबर्स है ना, और हाँ मैंने अज्यूम किया है कि हाँ। ये जो प्रीवियस मंथ का अ, जितना बाइफरकेशन है वो यही मंथ में भी रहेगा, सो हो सकता है इसलिए नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो टाली, ये तो नंबर्स है ना, ये तो एक्सेल है ना, ये पे अजम्पशन चलते नहीं है। तुमने क्या किया होगा कि एसयूवीज जो है, एसयूवीज को तुमने, तो क्या होगा, ये ब्रेकअप नहीं मिलता होगा, मतलब एग्जैक्टली जो डोमेस्टिक है पैसेंजर ये जो है 43, तो हाँ प्रॉब्ली सब कुछ मैच होने चाहिए ना, 43 होने चाहिए। अभी इधर तो हो रहा है, हाँ, हिंडई में हो रहा है, ठीक है, मारुति में हो रहा है हाँ, क्या? देखते हैं मारुति के 137 इज मैचिंग, 137, हाँ ये मैच हो रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस, ये भी तो डोमेस्टिक में तुमने डाला है, right? तो ये भी मैच नहीं हो रहा है ऐसा। तो क्या करते हैं हम ओवरऑल, फिर इसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, सब में ऐड कर देते हैं ऐसा। अच्छा, तो ये एक होगा कि दैट इज वाई इट इज नॉट मैचिंग, क्योंकि अदर क्योंकि ओईएम है ना ये। या फिर तुम हाँ, ऐसा है ना, इसमें कर सकते हो कि इसमें ना ये नंबर में ही तुम कुछ तो अज्यूमिंग की जो एक्सपोर्ट्स हुआ है ना, अदर ओईएम्स का ऐड कर दूंगा अदर इसमें। ओईएम्स का इसमें ऐड कर दो, सेडान्स में या फिर एसयूवीज में ही ऐड कर दो, बिकॉज मेजरली वो जिमनी सेल हुआ है उसका, तो ओके, ऐड किया इसमें। अच्छा ये तुमने असम्पशन, अच्छा इसके नंबर्स है क्या ये? हाँ वही, क्योंकि अभी ओके, जैसे जुलाई के नंबर्स आए नहीं होंगे ना प्रॉपर, आए नहीं, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। इसीलिए। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। और ये वही, इधर से तो ये तुमको ऐड करना है, वो अदर ओईएम्स का तुमको ये हाँ, जैसे अगर आप जून का देखिए तो हो सकता है कि वो हो जाए ऐड, मैंने देखा नहीं, आउटपुट ऑफ पीआर। पर नहीं, तो उसमें वही एक फर्क है कि तुमने सब डाला है क्या? हाँ, सब डाल तो दिया है वैसे मैंने, एक बार आप टू देखिए। फोर्टी सेवन है नहीं, तो नहीं वही फिर भी नहीं हो रहा। दो तीन जो चीजें यार थी, वही हाँ मेन तो वही था मारुति का, कि तुमने वो डाला है, हाँ, पीवी में डाला है, तो टैली हो रहे हैं क्या ये सब नंबर्स? तो अभी इसमें ये इसके फर्क है, अंदर, 8 to 1 का फर्क है। राइट राइट, ये जो डोमेस्टिक में डाला है ना, इधर भी हाँ फोर व्हीलर्स में डाल दिया, डोमेस्टिक में भी डाल दिया, यहाँ पर एसयूवी या तो सीडान कुछ लिखना पड़ेगा, करेक्ट तो वो ऐड होगा फिर। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें वो, हाँ एक में ही किधर ऐड कर देना, वो ऐसा है। हाँ, एक बार आप इसके सामने जो डोमेस्टिक वाला है ना सर, हाँ वो जो हम लोगों ने सेल्स ऑफ ओईएम किया है, उसके सामने एक बार जरा कोई भी लिख दो ना, एसयूवी या सीडान सीडान लिख दो, हो सकता है टैली हो जाए। देखो एक बार, हाँ, एसयूवी लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो। यहाँ पे लिखा है खाली तुमने अदर ओईएम्स, ये रहा, डोमेस्टिक। हाँ हाँ, उधर पे बस, राइट, अभी हो सकता है, हो माइट भी, हाँ भी हो गया, वही था। है ना। बस, वही एक था। परफेक्ट, तो वो मारुति सुजुकी के इसमें ही है जो एसयूवी नहीं लिखा है वहां पर, और साथ ही साथ में जो अभी तो हो गया होगा, एसयूवी लिख डोमेस्टिक दिया, के, सब में आ यस गया यस, होगा ना, वो सब तो में आ सब गया में है, आ गया यस होगा वो, यस, सब में आ गया। अभी प्रॉपर है, अच्छा हो तो ये गया, सब अच्छा बना टैग था हो ये, गया। अच्छा तो इसके लिए ये शीट बहुत काम में आती है, जब बता दो ना तुम हम्म, कि ऐसा बनाया मैंने, यस, तुम्हारे मैनेजर को बताओ कि सर आप इधर सिर्फ नंबर चलाओ, अपने आप सब आ जाएगा। हाँ यस। तो इट विल नॉट इवन टेक यू 1 minute टू एनालाइज। सर मैंने ना कुछ वो भी नहीं। जानबूझ के जो ये लिस्ट ऑफ डेटा वाला है ना शीट, हाँ उसके अंदर है ना वो चेंजेस एडिटिंग नहीं हो पाता, जानबूझ के मैंने ड्रैग किया है, क्योंकि अगर मतलब एग्जांपल के लिए मैंने जल्दी जल्दी में अगर लिस्ट ऑफ डेटा में कुछ भी चेंजेस किए हाँ हाँ, और मेरे मारुति के इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये हुआ है हाँ। तो फुल हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि जो भी चेंजेस करना है मारुति से ही करूंगा। अरे मैं कर बार अच्छा किया है। हम्म, बेस्ट है, यहाँ पे ही चेंज करना है, हाँ यहाँ पे एक ही इधर डालना है तो उनको सब, और ये भी वही फॉर्मेट में ना जो फॉर्मेट में रिजल्ट आता है, हाँ यस, तो अच्छा होगा। मैंने वो सबको ऐड किया है, सब टोटल किया है, सब कर दिया है बराबर। ठीक है, ग्रेट। हम्म, अच्छा है।
ठीक है, ऐसा ठीक है। मैं इसको वो चेंज करके फिर अपना ये रिपोर्ट का देखता हूँ कैसे करना है। हाँ एक्चुअली मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, मैं हफ्ते भर था ही नहीं। हाँ हाँ। तो इसलिए। एक्सक्यूज डोमेस्टिक। मी सर, हाँ सर ये आप हुंडई का बोल रहे हैं कि वो डेटा नहीं है, मतलब जैसे मैंने अभी हुंडई की साइट से, वेबसाइट से ही लिया था डेटा। हाँ हर मंथली मंथ की फर्स्ट डे को उनकी शीट आ रही थी, मतलब डेटा हाँ डोमेस्टिक राइट, और एक्सपोर्ट ये का। एक चीज हो ये सकता है ना। मतलब अगर वो लिस्टेड नहीं है फिर भी उनको पब्लिश करना पड़ता ही होगा ना प्रेस रिलीज तो। हाँ मतलब उनका डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल ये जरूर आ रहा था, और कहीं कहीं एसयूवी का परसेंटेज दे रखा था कि कितना एसयूवी परसेंटेज बिका। आई थिंक 24 का मेरे को भी नहीं मिला था, देखो है क्या हाँ 24 के नंबर है मैं क्या भी जितने चेक कर लूंगा एक बार कि मैंने गलत डेटा तो नहीं लिया, क्योंकि मैंने जनवरी 23 तक का ले रखा है। तो देखा था, मतलब वो हाँ कहीं पे कंपैरिजन टेबल भी बना, बट कोई कंसिस्टेंट फॉर्मेट नहीं था उनका। कहीं टेबल ईयर टू ईयर बना बस रखी थी। हाँ, मतलब मैंने जितना अभी तक इनका जो अनाउंसमेंट देखा तो हाँ इनका जो भी अनाउंसमेंट था, मतलब कि वो अपना जैन वाले इन लोग कब लिस्ट हुए मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब से लिस्ट हुए तब से इनका डेटा था प्रॉपरली। और मैंने जितना भी देखा हाँ, जब उसके से अंदर जो लिस्ट हो तब से डेटा था, हाँ हाँ, करेक्ट। वो जब उन लोगों ने जितना अनाउंस किया है और प्रीवियस ईयर के नंबर्स अगर दिए हैं, हाँ या तो ग्रोथ वाइज या तो फिर मतलब आप देखेंगे वहां पर फॉर्मूला कंसिस्टेंट नहीं है Hyundai के इसमें। क्योंकि समटाइम्स दे हैव गिवन कि डोमेस्टिक इतना है, टोटल इतना है, तो एक्सपोर्ट निकालना पड़ रहा है। समटाइम्स दे हैव गिवन कि एक्सपोर्ट इतना था और फिर उनका टोटल नंबर था तो फिर डोमेस्टिक निकालना पड़ा, ऐसा कुछ वैसा करके निकालना पड़ा है वो। हमें वैसे वो बराबर देते नहीं है बराबर हाँ, Hyundai का। पर अभी 25 का दिया है तो 24 के नंबर होने चाहिए ना, उसमें ग्रोथ तो दिया होगा ना। उसमें ग्रोथ नहीं दिया था ना, इसीलिए मैंने वो एक्सपोर्ट के नंबर नहीं डाले थे। अच्छा ऐसा, अच्छा एक्सपोर्ट का ग्रोथ हाँ, नहीं दिया था, अच्छा हाँ एक्सपोर्ट का डोमेस्टिक ग्रोथ का नहीं था, दिया, एक्सपोर्ट का हाँ नहीं था, अच्छा। राइट। ये फर्स्ट को जब आया होगा इसका नंबर्स। जैसे इसमें जुलाई वाले में बरोबर दिया है तो मैंने वो जुलाई वाला कर दिया है प्रॉपर। जी तो ये टोटल सेल्स में दिया होगा ना नंबर, देखो होंडा कैसे हो सकता है, होंडा रिपोर्ट टोटल सेल्स ऑफ 60,000। हम्म ओके तो जैसे ये अभी इसमें दिया है ना, जैसे अपना जुलाई 24 के इसमें है, हाँ, तो उन लोग ने ग्रोथ नहीं दिया है कुछ भी। ग्रोथ भी नहीं दिया है कैसे। हम्म सर वही इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट था इनका यहीं पे। अच्छा एसयूवी कंट्रीब्यूटेड खाली वो दिया, और फिर दे दिया कि ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है डोमेस्टिक और इतना कर रहा है एक्सपोर्ट। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर से कितना ग्रोथ है एक्सपोर्ट का वो पता हाँ, ही नहीं है। तो इसमें ये ऑटो पंडिट्स पे आएगा अभी। हाँ, ऑटो पंडित्स पे आएगा वो, लेकिन उसके अंदर भी फिर भी एक्सपोर्ट के डेटाज नहीं रहेंगे, सिर्फ डोमेस्टिक रहेंगे। गूगल आया है, गूगल में आया क्या, गूगल में कभी कभी देते हैं लोग। मैंने होंडा सर्च किया था, मुझे नहीं आया था, मुझे प्रीवियस ईयर का नहीं आया था। जुलाई 25 सेल्स। वो भी प्रेस रिलीज से ही रहा होगा। डोमेस्टिक सॉ ये ओ अच्छा, डोमेस्टिक सॉ डिक्लाइन वही दिया है, एक्सपोर्ट्स एक्सपीरियंस द मॉडरेट ग्रोथ। ये अभी आया क्या, ये अभी आया मेरे ख्याल से, आ गया इसके डेटा। क्योंकि जल्दी कैसे आ गया ऑटो पंडित्स के कंपैरिजन में। कार्स, ये तो 44 जून है, नहीं जून है ये, हम्म जून है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जुलाई। अमेरिका का है वो, अमेरिका है तो Hyundai मोटर्स अमेरिका। नहीं है। वो रहेगा ही मेरी समझ से ना, मतलब क्योंकि इट्स रिसेंटली लिस्टेड ना, तो वो हाँ इशू रहेगा ही, और उनका फॉर्मेट भी कंसिस्टेंट नहीं है। इन्वेस्टर रिलेशन में मैं मेल डाल देता हूँ उन लोग को बता डालते हैं देता एक्चुअली, हूँ। हम बताते हैं, पूछते हैं हाँ, क्या हो गया है कि यार पहले के सीरीज नंबर। यूजुअली क्या होता है ना, ये ना सीएम डेटा पे सब मिल जाता है, जिनके सब्सक्रिप्शन होते हैं ना टोटल, वो उनको मिल कितने का जाता आता है है वो कि सब्सक्रिप्शन। नहीं, वो ब्लूमबर्ग से आता है, महंगा आता है कुछ 4-5 लाख का आता है साल का, बाप रे ऐसा कुछ है। मेरे को लगा 1-2 हज़ार का आता होगा, ले नहीं नहीं, लूँ इतना नहीं आता है। उसमें सब मिलता है तुमको, कि कौन से सिटी में कितना बिका है, कौन से स्टेट में कितना बिका है, अच्छा, इतना कितने डिटेल। मॉडल्स बिके हैं, और फिर एक्सपोर्ट्स सेल्स कितने थे, काफी ज्यादा डिटेल में आता है। अच्छा, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है। मतलब रीजन वाइज भी होता है, नॉर्थ रीजन कितना, साउथ रीजन कितना, फिर सब प्रोडक्ट्स जितने भी कंपनीज बिकते हैं, मतलब वो छोटे से छोटी कंपनी भी बिकती होगी उसका भी आता है। अच्छा, ओके, ऐसा है। ठीक है, अंडरस्टूड।
सर ये करने के बाद ना मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं जुलाई का रिपोर्ट बना दूंगा, इसका सोच रहा हूँ। हाँ वहाँ ना, क्योंकि मैं- अभी तक तो चाल ठीक है ना, हाँ। 7 तारीख ही हुआ है। चलेगा, ठीक है। ठीक वो है। ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे बनाना है वो रिपोर्ट। अभी मैंने वो वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, वो ओके। देख के फिर उसके बाद में मैं बनाता हूँ वो। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो सर मच जो सर। आ, सर जो अभी न्यूज़लेटर मैंने आपको सबमिट किया वो पोस्ट हाँ कर सकता हूँ या उसमें कुछ हाँ हाँ, चेंज? नहीं करो, अच्छा था। गुड। सर उसमें मैंने मतलब कहीं पे लेक्स यूज किया था, कहीं पे मिलियन यूज किया था, क्योंकि सर लेक में ना 1-2 लेक इस टाइप से है, तो फिर वो मिलियन में जाके वो छोटा नंबर हो जाता। लाइक लाइक प्राइस टू बी स्टार्ट विद 31.7 लाख। तो सर अच्छा। एक्चुअली मतलब इंडियन मार्केट के परस्पेक्टिव से हम लेक ही बोल सकते हैं प्राइस को, हाँ मतलब। एक्चुअली बराबर था, मतलब गाड़ियों की प्राइस का तो बराबर है 37 लाख, बट अगर लेट्स से अगर तुमको ये बाहर भेजना है, इंडिया के बाहर भेजना है किधर, उनको हाँ। नहीं समझता है, तो हम क्या लिखते हैं, 317,000। ओके, और सर नीचे उसमें कैपेसिटी में भी मैंने फिर वैसे तो न्यूज़पेपर में लेक्स में दी थी, बट वो मैंने फिर मिलियन में कन्वर्ट कर दी नहीं थी। तो लैक्स का मिलियन में नहीं, लाख अगर छोटा है ना, अभी 0.82 में, तो 820,000 होगा, ऐसा लिखते हैं, 820,000 यूनिट्स। बात वही ओके, है। 1000 में लिख दो मतलब 1000 ऐसे। में लिखते हैं, हाँ अगर पॉइंट में जाता तो 1000 में लिखना। 37 लाख है तो ये तो मिलियन में लिखना चाहिए, 3.1 मिलियन। वो सही, वैसा ही है। ये लोग ऐसे ही लिखते, लैक्स नहीं लिखते, 3.1 अभी। ठीक है, वो कार का था तो मेरा भी ध्यान में नहीं गया, अच्छा कि मिलियन, क्योंकि एंड ये 7.8 मिलियन ठीक है। है। ठीक है। और अगर जीरो में जाता होगा तो 1000, ऐसे ऐसे 820,000। ये भी पॉइंट ठीक टू है। मिलियन नहीं, 250,000। ओके। ठीक है ओके। सर। ठीक है। थैंक यू। काम। हेलो थैंक यू सर। सो मच सर। हाँ हाँ सर वो मैंने आपको एक हाँ मॉडल विघ्नेश, भेजा था, वो मॉडल फाइनेंशियल प्रैक्टिस का। विघ्नेश कुछ पूछ रहे हो? हेलो। 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 हेलो, हाँ विघ्नेश। हाँ सर, वो मॉडल भेजा था, वो मेरा टैली नहीं हो रहा था, मैंने देखा एक बार, मतलब मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं। ह्यूमन एरर हुआ ना, देखो कहाँ पे हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ? सर वो फाइंड आउट ही नहीं हो रहा है, 7,50,000 का डिफरेंस अभी भी दिखा रहा है। मुझे मिला तो, मुझे मिला तो क्या दोगे मेरे को? गलती हुआ तो ठीक है, एक सेकंड, अगर ह्यूमन एरर हुआ ना विघ्नेश, तो देखो कि लिंक बराबर नहीं किया, मैं बोलता हूँ एक सेकंड। और इतना लेट क्यों भेज रहे हो तुम अभी? तो वो मैं बोला ना, सेशन छूट गया था, अभी मैं कवर अप कर रहा हूँ सर। ओके। किधर था, किधर टैली नहीं हो रहा है? सो ये वो इधर। ये रहा इधर। क्या तुमने 1 लाख का इक्विटी लिया है, ठीक है। बैंक अकाउंट दिया। पेबल्स किधर लिखा तुमने? ये 2 लाख का पेबल्स है, उसका एंट्री किधर है? तो ये किधर है? ना पेबल्स है, ना रिसीवेबल्स है, ना ये इनकम फ्रॉम शेयर्स है। वो तीन ही तो आइटम है, 7 लाख रिटर्न, वही नंबर है मेरे ख्याल से। इनकम फ्रॉम शेयर्स किधर है तुम्हारा इसमें, किधर है बैंक अकाउंट में? बट सर इनकम फ्रॉम शेयर्स वो बिजनेस से नहीं, तो इसमें भी वो डाल सकते हैं मेरा पैसा। पैसा नहीं आया क्या, पैसा नहीं आया बैंक में? नहीं आया सर। तो बैंक अकाउंट है ना, इसमें डाल सकते हैं, मतलब क्या तुम बोल रहे हो, तो पैसा तो कैसे आया, कैश में आया? ये रिसीवेबल्स 5 लाख, मतलब क्या होता है रिसीवेबल्स 5 लाख का? सर आने वाला है ऐसा सर। सेल किया 70 लाख का, 70 लाख रुपए आए पूरे, पूरे 70 लाख रुपए आए। यस सर। तो रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? मतलब सर ये आने वाले डेटस में, आने अभी वाले में। तक नहीं है। तुमने 70 लाख बोला कि आ गए, पर बाद में पता चलता है कितना, कि 5 लाख तो आए ही नहीं है, तो क्या करोगे? माइनस करेंगे ना सर। हाँ तो किधर किया तुमने माइनस? एंड सर वो पेबल्स का फिर कैसे एंट्री दिखाएंगे? तुम बताओ, पेबल्स मतलब किसको करते हो तुम, पेबल्स? सप्लायर्स को सर। तो जब तुमने बोला सप्लायर्स को मैंने कितने पैसे दिए, 40 लाख, हाँ
2 लाख क्या है, ये दिए नहीं दिए? नहीं दिए सर। तो इन शॉर्ट मतलब कितने दिए होंगे तुमने सप्लायर को? 38 सर। तो क्या करोगे? तो ठीक, ये माइनस ऐड करेंगे। ऐड करोगे 2 लाख, हाँ, तो बस वही करना है। 2 लाख यहाँ पे ऐड होगा, 5 लाख माइनस होगा। नेक्स्ट ईयर करोगे तो डिफरेंस लोगे फिर तभी। ये तो फर्स्ट ईयर था, नेक्स्ट ईयर जब करोगे तो यू विल टेक अ डिफरेंस। ओके। और ये वजह 4.5 लाख का, और क्या? अभी इनकम फ्रॉम शेयर्स, वो किधर है, वो भी है ना? सुनो, इनकम तो इधर से आना चाहिए ना, इनकम की तरह मैंने नहीं लिया इनकम फ्रॉम शेयर्स। अच्छा, इनकम फ्रॉम शेयर नहीं था वो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था वो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था वो, इनकम फ्रॉम शेयर, इनकम इधर आता है क्या, पीएनएल पे आता है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था वो। इन्वेस्टमेंट सर। तो मतलब तुम्हारे ध्यान से नहीं किया तुमने? नहीं सर, जो आपने वो रफ शीट में लिखा था वही आपने बोला था, वैसा वैसा करना है, तो जैसा था मतलब रफ शीट में ऐसा थोड़ी वो किया, जो। आधे चीजें तो, आधे चीजें तो किया ही नहीं तुमने, उसका क्या? और 4 लाख का क्या फर्क है अभी इसमें? और ये अदर एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिए? लिए, ओके सर। ये क्यों लिंक है यहाँ पे, ये क्या है, नंबर कहाँ से है? सर ये प्लांट एंड मशीनरी सर। कितना, 1 लाख की है, 1 करोड़ की है? क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट पर डालना है। तो तुमने क्या डाला है? मैं परचेस डाल दिया सर। हम्म, की गलती, ह्यूमन एरर। अभी ये मैं तुम्हारी गलती ढूंढते हुए तुमने कहाँ पे गलती किया है? वो एक गलती थी मेजरली, तो बाकी तो ठीक है, ये तो मैं बात भूल गए थे, बट ये मेजर गलती ये थी। हाँ वो ओपनिंग अकाउंट और परचेस का डालना है। तो ठीक है। ओके। ठीक ओके है। सर। सर अगर नेक्स्ट ईयर का अगर अपने को अभी समझो पेबल्स 2,50,000 है, हाँ, मतलब अभी 50 ज्यादा दिया है तो माइनस होगा ना बैंक अकाउंट में, मतलब 50। नहीं, देखो ना, मैं गया, मैंने बताया ना सेशन में क्या था। नहीं वो सेशंस में सर ये आपने वो होमवर्क दिया था वो ये नहीं था ये। सेकेंड सेशन में दिया है मैंने, क्या किया उसका। 50 है तो ये लोन्स होता है, ये लोन्स अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा, लोन तुम्हारा बढ़ गया तो इनफ्लो आउटफ्लो।
लोन्स बढ़ गए। सोर्सेज ऑफ फंड है ना, तुम बता, सोर्सेज ऑफ फंड्स है मतलब हाँ क्या है? सो तुमको कोई पैसा दे रहा है, पहले तुमको किसी ने 2 लाख का दिया, अभी टोटल उधार हो गया 2,50,000, मतलब उसने क्या किया होगा? तुमको पैसा दिया होगा, तुमसे लिया होगा पैसा। पैसा दिया होगा मुझे सर, हाँ, तो पैसा दे तो बैंक में क्या होगा? ऐड होगा सर। तो इतने ही तो है। और ये जैसे खर्चे है, सब खर्चे थे, किसी को तुमको 5 लाख देने थे, अभी टोटल 7 लाख देने हैं, मतलब क्या हुआ? मतलब किसी ने तुमसे उधार लिया था 5 लाख, अभी पूरे टोटल उधार 7 लाख का लिया है, तो तुमने उसे पैसे दिए या पैसे लिए उससे? नहीं पैसे दिए। दिए हो ना, तभी उसका उधार बढ़ गया ना। तो हाँ इनफ्लो हाँ, या आउटफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो, बस वही है। तो ये तो मैंने बोला था कि सब इन्वेंट्रीज करना। तुम्हारी इन्वेंट 10 लाख है, 10 के 13 हुए, मतलब क्या हुआ? कैसे बढ़ते इन्वेंट्रीज? परचेज किए सर। देखिए, पर मतलब कैश आया या कैश गया? कैश गया सर। तो बस उतना ही तो है। वो सिर्फ ओके। फर्स्ट ईयर में कर दे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अज्यूमिंग कि लास्ट ईयर कुछ नहीं था, जीरो था, अच्छा। इसलिए वो करते हैं, वरना तो फर्स्ट ईयर में वही करते कि जीरो था, अभी 2 लाख बढ़ गया, मतलब तुम्हारे पास 2 लाख कैश आ गया, अभी 2 लाख से 2,50,000 हो गया, मतलब 50,000 कैश और आ गए है तुम्हारे पास, मतलब। अच्छा। ठीक है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।